Hello and welcome to today's podcast. I am Shalina. I'm Umar. I am Behruz. We will be exploring Colaris, a platform bridging industry and academia. We have the founder and chairman, Mr. Mubashir Hamid of Colaris with us today. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम. Thank you for having me. So, sir, How are basically, I'm doing very well, Janab. No, I'm so doing very well. It's been a pleasure with you today. But the thing is, I'm a bit nervous. By the way, मैं सबको बता दूँ कि मैं मिल रहा हूँ. ये जो सर का जो background है, he holds a very renowned और बहुत important position सर ने globally. He's been the CTO of MoneyGram, फिर FIA के CTO थे. And by the way, जो हर बच्चे का I am in the university right now. और जो भी कोई स्टूडेंट होता है इवन दो वो आईवी लीग से होता है उसका एक ख्वाब होता है कि यार मैंने जो है ना जी में जाना है. अगर जी में मेरा लगे था ना, ही वाज द सीटीओ ऑफ जी और उसके अलग अलग सेक्टर्स जो थे सर ने उसके अंदर भी तो कहते. तो दैट्स व्हाई आई एम अ बिट नर्वस. सो और आज एक ऐसी चीज़ का मुझे आई वुड से इट कि मेरा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि सर की एक बनाई हुई चीज़ है कोलैरिस, एक प्लेटफॉर्म है जो सर ने पूरे 10 सालों के अंदर बहुत मेहनत के साथ बनाया, अपनी उसके सारी एक्सपर्टीज़ डाली, जो भी स्पेशलिटी थी, और फिर वो हम आज वो मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, मेरे क्लास में जितने भी वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे जो मेरी एज के वो हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं. और आज उसके टॉपिक के ऊपर मैं बारे में बात करें. मैंने अक्सर अपने दोस्त से बोल भी रहा हूँ कि मुबशिर हमीद इज़ अ मेंटोर टू मी. और हर कोई हर किसी का मेंटोर नहीं हो सकता क्योंकि अ मेंटी हैज़ टू मैच द थिंकिंग एनालॉजी ऑफ इट्स मेंटोर. तो वो सारी चीज़ें. सर बताएं सर कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान में और यहाँ काम करते हुए विद द यूनिवर्सिटीज. I mean, I don't want to make it sound like कि मैं को बाहर से आया हूँ. मैं यहीं की पैदावार हूँ. Just to put things in perspective. कि अभी जैसे मैं बात कर रहा था, मतलब I grew up in नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद. It was इंटर के बाद चले गए थे US, वहीं स्टडी की, फिर वहीं जॉब की. So I've had a good fortune. I've been very lucky. I mean, इसमें कोई शक नहीं है. There is I was speaking to some audience yesterday, and they asked the question if there is a roadmap for success, and I said there is no roadmap of success. It's at the end of the day, it's about what decisions do you make at any given point. Life is millions of decisions, right? So as long as you follow certain principles, every decision, and then every decision leads you to the next one and then the next one, and that determines your direction, right? This is basically how it works. And I just have had the good fortune. Yeah, जब I was just reading down to your profile और सारी चीज़ों के अंदर, तो वहाँ पे मैंने एक बड़ी unusual सी चीज़ notice करी थी that you graduated from Shipownner College. It's a government college, and then you moved to USA. वहाँ जाके आपने Wichita State University में enrolled हुए और फिर उसके बाद वो सारी चीज़. I just want to know a brief of that ना, क्योंकि it's an inspirational story for me. I guess audience के लिए भी होगी वो सारी चीज़. Was it easy for you to go from Pakistan? Yeah, in 1980s वो तो एक itself एक बहुत बड़ा task था. Yeah, so I had never had any ambitions to go to States. It was never on my radar screen. I went there in fall of 83. I think it was maybe 9 months prior to that I actually even thought about even going to the US. And it was just not something that was in my plan calendar. I wanted to go and come back as quickly as I could, right? So coming back to, yes, I went to Shipowners College, and it was not a top-notch education institution like people may think. There was average, there were good students, there were not so good students, there were more not so good students, and they were, so it went. I mean, I just enjoyed that experience. Going to the US, I studied electrical engineering there. I asked my father just a one-way ticket and just give me one semester fee, and he was kind enough to say, okay, you can have a whole year, fee. So I was very, very thankful, So to him for that. आपके कोई relatives वहाँ पे already थे US में? No, I did not have anybody. So it was a I new did not country know to you, anybody. मतलब बिल्कुल. I mean, I knew one a friend of mine. He was not a friend; he was an acquaintance. But he went to the same university. So right before I left, I knew that he was coming to the US, but I didn't. I knew nobody over there. I mean, you show up and
I remember the taxi dropped me at the campus activity center, and I came out as a typical immigrant, I guess, with one suitcase and just looking around buildings and wondering where am I supposed to go. It's a new experience. See, nowadays everybody knows almost everything about the world, right? Yeah, True. उस ज़माने में इतना नहीं था. मतलब, some people knew and a lot of people did not know. How And I did was you one of those people. find about this university? Wichita State मतलब उस जमाने में इंटरनेट तो आई बिलीव नहीं था, तो फिर आपने किस तरह के बहुत अच्छा सवाल है ये कि आपको पता कैसे कैसे चला इंसान को विचिटा यार? So, स्टेट यूनिवर्सिटी का? I started applying into universities, and I had admissions from 3 universities. I got one from Iowa State, from Wichita State, and one of the University of California campus. I did not know one from the other. I didn't know which university. And my mamu, he went to Oklahoma State back in the 70s. तो वो आगे with the वापस. He happened to be visiting Karachi, and I showed him my options, and he said, well, when I was there during summertime, I used to travel to Canada for work. So I used to drive through Wichita, and it seemed like a nice town. So I picked up. I went to Wichita Nice State town. because that was my. So it was a nice town, Nice town. right? But I knew nothing, about that. Okay, sir, moving after this education, Wichita State के बाद bachelor's करने के बाद, then directly जी मुझे सर इसके ऊपर मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा I'm sorry अगर मैं ज़्यादा brag कर रहा हूँ इस चीज़ को, but ये जो जी है ना, it's like सब हर बच्चे का, even though मैं भी अभी अगर यहाँ बैठा हूँ ना, उसके बहुत सारी चीज़ें हैं. और आपके और एक बहुत मजे की बात मैं बहरोज से भी उस दिन डिस्कस कर रहा था कि सर जो हैं वो जी के अलग अलग एस्पेक्ट, कमर्शियल फाइनेंस में सर थे, एविएशंस के अंदर थे, वो सारी जो चीजें थी, तो एक बहुत ओवरआर्चिंग कॉर्पोरेट लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ गुजार के फिर एकेडमी की तरफ, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली ओवरआर्चिंग देखने की एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारी चीजें के साथ वो कॉर्पोरेट में आप किस तरीके से सारा सब कुछ हुआ. So देखिए, मैं जब actually after graduation I joined a electrical contracting company in Wichita, and I joined as an executive assistant. Okay. Nice. So I was an executive assistant to the operations VP. Okay. And when I started working, I knew that I found my calling. I mean, I just knew that. And a year later, they invited me to be on the board. So Nice. I went from, it took me about 12 or 13 months. And I stayed with that company for about 4.5 years. And then मुझे एक वो entrepreneurial जो है ना इसका जिसे कहते हैं कीड़ा होता है, so I had that I had a bug in me. So I actually left. यही अभी entrepreneurship भी ज़्यादा सबने अपने आप को pursue किया हुआ है कि सब entrepreneurs बने. So I left that company, a small company, but I left to start my own consulting business. Okay. And it did not last for more than a year, not even that much. Maybe I was just newly married, and I guess I wasn't ready for those kind of changes. And so then I realized it wasn't working. And then I applied for a IT manager position at one of the GE Aviation, what they used to call GE Aircraft Engines, उनकी facility में. And that was the beginning of what I do now. Okay. क्योंकि वो जो था, they had just in the previous couple of years they've gone through some downsizing. Okay. In the early 90s, 90 to 93 time frame, aviation industry went through a major shake-up, and there was a lot of layoffs and cut downs. But then they was coming back up. So when I was hired to actually rebuild the team and the confidence and all those things. So I started there. I was there for about 3 or 4 years. I was there. Then I got the opportunity to take on the CIO position for GE Energy's aero energy business. It was a new acquisition in Houston. GE had never been in Houston before. Okay. So this was the first acquisition, and they were looking for a CIO. And I went there to meet with my boss, who became my boss later on. And I remember flying back to Wichita, and I was thinking, here I have an opportunity to apply everything that I learned to my own. At that time, with the aircraft engine business, I had
progressed to a manager for the North America overhaul and repair operations. nice. I had over 100 employees, $100 million budget and so on and so forth. This business was literally like 20 employees the, and the budget was like $4.5, $5 million. Oh, So in your conventional wisdom, people would say, no, I don't want to take this kind of, it takes me back. Yeah. But in my view, this was an opportunity for me to build something from scratch क्योंकि open that I ground would सर call आपको मिल गया था ना myself. अपनी मर्जी से Exactly. कर सकते थे एक्सपोजर आप। भी सर का अब ऐसा रहा है Exactly. तो उनके बेस्ट Exactly. And I also, I learned long time ago that people work for people. People don't work for companies. It's a People work for- completely, ये बात सही नहीं है. You really work for people. Yeah. So my future boss, Rick Stewart, who I just, to this day, he was one of my 2 best bosses, maybe 3 best bosses. And उससे जब मैं वापस जा रहा था, मैं सोच रहा था उसने, the way he talked to me, this was the place to me. And I had lived in Wichita for 16 years. I had no desire to move and what have you, but I took a chance and I went there. And I spent 4 years there. And I had the best career of my all the jobs that I've had in the last 30 years. Those 4 years at the Aero Energy in Houston was the best job I've had. I had a boss who was very supportive. And I had to build a team from scratch. I built a system from scratch. We built technology platforms that became like the showcase within GE, okay, and within different businesses. And so, then I was asked to take on, at that time, some major restructuring was taking place, and the GE Capital businesses, okay, 27 businesses there, they regrouped them into 4 divisions. The largest division was their leasing and lending business called GE Commercial Finance. And they were looking for a chief technology officer who could bring these, large businesses together and create shared services. So I went to Commercial Finance, and I only survived there for 1 year. It was one of the toughest assignments that I had. We have to imagine, and it's all about, because remember, these were 8 businesses that had CIOs. There were 8 CIOs. Each one of the business was $1 billion to $3 billion business, right? So It's a big here responsibility. comes a guy who is going to pull stuff from them and create shared services. It wasn't very easy. People were not very Yes, fond of but that. सर एक ये I would say कि एक opportunity थी कि एक lending का business जो conventional तरीके से होता था, and you have been appointed as a CTO. So वहाँ पे there was before me there were 2 other people who actually ran that group, but I guess they were looking for somebody. So this is interesting. I found out later on. I spent 1 year. I found out later on that my nickname was Hammer. Hammer. Why is it? So Hamid and Hammer, I guess, because I could pound the table, I could push, I could drive. Okay. So that became my reputation. It was my So job you to. take it as a compliment? It's think my it job. is a compliment. It's my job. It's a right? compliment. It is a I mean, compliment. some people call me Darth Vader. Right? नहीं, They सर, call me Darth एक Vader. जो चीज़ आपकी लाइक ये जो हैमर वाली चीज़ है, आई डोंट नो कि मैं सही उसको कर पाऊंगा या नहीं, बट आई थिंक ये इस वजह से है क्योंकि आपका जो एक एंटरप्रेन्योरियल सारा वो सब सेटअप था ना कि इस तरीके से करना है, एंटरप्रेन्योर आप बता रहे थे कि आपके अंदर एक चीज़ यू फाउंड यू दिस, आप अक्सर कहते हैं कि इफ यू फाइंड यू दिस इन योर लाइफ you'll succeed. और उसके बाद सर वो जो आपके वो विचिटा स्टेट के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी थी उसको भी आपने फिर क्विट करने के बाद फिर आपने अपने एक ओन स्टार्टअप करा, Right. वो भी नहीं हुआ, बट यू नेवर, मतलब आपने He never यहाँ gave up. वो Yeah. यहाँ पे Hammer ही कर सिनेरियो जो था Yeah, exactly. यहाँ पे सिनेरियो ये था कि हर सब चीज़ें प्यार मोहब्बत से नहीं होती, राइट? बास चीज़ों के लिए स्पेशली व्हेन यू आर रीस्ट्रक्चरिंग, certain things have to be done. So they have to be done. Anyway, but like I said, that was 1 year over there. Then they asked me to take on the CIO role for GE Security. And GE Security was a brand new business model that GE was putting together. This was in 2003-2004 timeframe. GE decided to go into security business. They made some acquisitions, and they were going to make more acquisitions and grow it. And again, my job was to go in and restructure, consolidate, create shared services, reduce the technology footprint, save money, all those kinds of things that we did. So I did that for about a year and a half. By this time, I was getting tired of doing the same thing over and over again, right? Okay.
So you were losing needed the some motivation. challenge. You So needed then something challenging. Right. Well, yeah. It was challenging, but you know what? You sort basically first thing you do in 4 years, second time you do it in 2 years, third time Yeah. you do it in 1 year. But at And the it end of the becomes day, very easy peasy. Yeah, I well, just recently discovered this thing. मतलब साथ ही में बहरोज के तब मुझसे बात की, मैंने एक बहरोज से बात की, मैंने कहा यार बहरोज जो आदमी क्रिएटिव होता है ना वो रूटीन वर्क नहीं कर सकता, नहीं कर Yes. सकता I Which get is very bored true. very easily. वो बर्नआउट हो जाएगा, वो है ना अपने आप से बिल्कुल उसको कुछ ना कुछ ना कुछ कुछ उसके नया बाद चाहिए, कहाँ नया हर 2 दिन में challenge कुछ चाहिए नया होता है। चाहिए उसको उसे। क्लोज इन्वायरमेंट नहीं समझ आता, वो बोलता है मैं नहीं इसमें रह सकता, Yes. मुझे नहीं रह अपना सकता। करना है, बस और मुझे आता है ये करना। होता है कि ये खत्म हो गया, अभी दूसरा काम चाहिए, मतलब Yes. creative people cannot just sit blank, they need they work cannot idle. continuously. इसीलिए they need missions. Yes. Yes. सर तो फिर उसके बाद ये कमर्शियल फाइनेंस so और then सिक्योरिटीज के after बाद that, then I decided to leave GE. I mean, I gave him 2 weeks notice and I walked out, and my bosses were very surprised. I mean, क्योंकि जब टॉप टैलेंट आपका कोई जाता है इस तरीके से, वो कंपनी की एक Obviously. रेपुटेशन जो होती है ना, Reputation. वो एक बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है कि यार इसने, क्योंकि आप जैसे सर आपने कहा कि यू वर्क फॉर पीपल नॉट फॉर द कंपनी, तो वो जो एक पूरा सेटअप चल रहा होता है, फिर उसके बाद लोग जानना शुरू कर देंगे दिस गाय इज एफिलिएटेड विद जी इतने सालों से, फिर वो एक उसकी एक मार्केट जो रेपुटेशन है बन के नाम बन जाता है, तो जब कोई so then I decided to, again, I left. I had no plans. But then I decided I will start my own IT services company. I worked on it for a year and a half almost. It didn't work out again. Okay. And so this was a second failure this in is your a second life. failure. Okay. And I don't call it failure. I call it, just- Learning experience. it was not a success. So was this the time that you thought of starting the platform, or you were still That was years, a little bit years? further. Okay, So at that okay. time, then I got a call from executive recruiters. They were looking for a CIO for Fiserv. So Fiserv is one of the, it's a global 500, Fortune 500 company. That's, I would say right now is the largest fintech in the world. Oh. So they were looking for a CIO for one of their divisions. And so I joined them. And they wanted to grow the business. And that's what I always like to do. वो क्रिएटिव वाला एंगल आ गया next- next mission. As we wanted to grow, but then here comes the 2009 financial crisis. Okay. So, and our business was basically a bellwether, is what we call. कि जिससे पहले कि उसने फाइनेंशियल इंडस्ट्री को हिट करना था, we knew because हमको पहले हिट हुआ. हमको very Because we were providing services to the financial services industry. So सर ये वही वो renowned recession है जो यूएस के अंदर आता है 2009. Oh. Actually, it had a global impact. Exactly. US में नहीं, तो but US के ऊपर. it was a major. So then I decided, because they wanted to then, okay, let's go shrink kar do. I wanted to grow, so I decided to part ways. So I left there. I did consulting work. This is about the time. No, I'm sorry. Uske koi few months later, I got the call from MoneyGram. So Goldman Sachs had come in as the private equity. TH Lee and Goldman Sachs had acquired 82% of MoneyGram. And MoneyGram was, it's a global brand. It was a very profitable business. But because of the what they did, so whenever you transfer money, basically you send the money to somebody else, and 2 days later it shows up over there. For the 2 days, that money stays in their accounts, तो right? business कर लेंगे. They put that money into saving. I mean, into certain investments. Okay. Oh. So MoneyGram had all of their money into mortgage-backed securities, right? So mortgage-backed securities, and the mortgage industry took a major hit. So that they wiped out about $1.2 billion of cash, right? And It's a so huge here you amount. have good profits, right? Good brand and everything. There is no cash. So there's a long story after that. But in any case, my job was to go in and rebuild MoneyGram like systems, this. platforms, cut the costs, and those things, which is what I have done, historically. So I did that for a year and a half, a little bit over that. Then I think I reached my targets sooner than what the plan was. And then, whenever private equity acquires, there is a churn of management up on the top. So when I came, obviously I was the junior most, and a year later I was the senior most executive because everybody else was let go of. Right? So that's how the private equity works. I mean, they are very, results-driven people. Results driven before.
So then I left MoneyGram. MoneyGram, Yeah. and that's about the time that when I was thinking about this. I had this idea of a product. So you see, cloud was just about to come in. Okay. Cloud became a bit more of a, I would say, a reality around 2009, 2010, 11, in that time frame. So when I was at GE, GE was known for talent management. Okay. GE was known for, Jack Welch was known for the guy, once, he was asked, what is your best product? They have aircraft engines, they have turbines, they have medical equipment, all kinds of things. And he said, my best product is my leaders, my people. Nice. Because he was so much focused on developing people. And I grew up in that system, right? I did my own growing in that system. I grew other people in that system. So that system had certain methods. It's called there was their annual manual process था उनका performance management का. To assess your Assessments, talent. assessment basically, right? And then what you do after the assessment, then you grow people, and those who did not work out, you clean house. So GE had a very rhythm. It had several years of rhythm into this thing. That's how they got to be where they were. Okay. So and at that time when I left, all these things were into pieces. कोई spreadsheet में कुछ काम होता था, कुछ PowerPoints पे होता था, कुछ nothing. So I said, I will put them together into a cloud-based platform that any company can use, right? So my goal was to create this talent management solution for a one-person HR department. Okay. So अब तक जो ये आइडिया था that was क्या कहते हैं limited to talent management thing. Was a talent management. वक्त talent So I management. decided to Okay. just focus on talent management. So we had a platform, we had a company established called Caliber Vantage. Okay. And Caliber Vantage के नाम पे वो product develop किया हमने. ठीक है. And again, up to this point, you have to remember this was, for me, it was kind of a pet project. It was more of my passion, things that I wanted to do, and so on and so forth. I put my own money into it. मेरी कोई investment नहीं थी, कुछ नहीं थी, and so this is how I started doing that. So it took you how many years to, just put together the entire platform? So that talent management portion of it, Yeah. right? That took me about a couple of years, and the reason was nothing more than that I did not have enough funds, right? I was funding it from my own Okay. pocket, right? Sahi hai. So that was the reason. Sahi. And then sort of there was a shift took place. I came to Karachi, and I was attending one of the sessions there. So I was part of a organization called Open, Organization of Pakistani Entrepreneurs of North America, which now has global chapters. At that time, we had four or five chapters in the U.S. I was president of the Houston chapter, and I was also on the global board. Nice. So we came to Open Karachi chapter. And when was this? Which year? This was 2012-13, somewhere around 2012-2013 time frame. So these things were going simultaneously. You were making the platform और सारी चीजें वो आप कर रहे concurrent थे. चल रहा था, right? Okay. Exactly. ठीक है. So I came, and I was myself and a good friend of mine. We came to attend this launching of Open, and there was a session held over there for 45 minutes, and it was bridging academia industry gap. Okay. ठीक है जी. And so I was sitting in the audience, and we were looking. So there was on the stage, we had about 5 or 6, 7 CEOs and company corporate people, and on the other side 5, 6, 7 or so VCs and rectors, and those people were sitting. And the conversation, and it was so and the audience was all the students who were sitting back there. And the conversation was, you don't provide us what we need, and you don't tell us what you want us to give you, and was वो finger pointing back and forth हो रही थी. And I sat there and I realized कि यार इन दोनों की bickering में तो ये जो पीछे बैठे हैं इनका तो बेड़ा घर की है, right? I mean, या वो लड़ते रहेंगे, इनकी तो होप ही कोई नहीं है. So that was the point कि आपको एक problem मिल गई. Exactly. So I need the next problem. And the next problem. The first challenge one, actually. yes, the first one was the talent management thing, जो already वो आपके साथ चल रही थी, but you did not have the funds कि उसको सारी चीजें आप कर सकें. But उसके बाद अभी एक नई चीज मिल गई थी, जो थी कि वो bridging academia and industry. So
So this was actually the starting. So even today, and when we come to this point, I will explain. लेकिन वो जो bridging academia industry gap जो है, that proverbial problem that exists, this was the first time I got introduced. So हमने जो platform develop किया था, it was a very unique architecture. I had developed it in a way, it was developed like an ecosystem. Okay. So you could have 1, 10, 20 million companies in one ecosystem on a cloud, right? That was the talent management. Now here we have the opportunity. Basically the framework was there. All we had to do, अच्छा उसमें ये था कि यूनिवर्स अपना जो companies थी, entities थी, they could interact with each other. अच्छा सर, आई जस्ट वांट टू, ये एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ जस्ट फॉर द ऑडियंस कि ये जो टैलेंट मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें ना कि वो काम किससे करते थे, तो बी इट मोर डिस्क्रिप्टिव, आप तो मुझे डिस्क्राइब कर दें कि वो क्या करता था वो प्लेटफॉर्म जब वो So talent management, good question. So the talent management was, okay, that whole thing was set up around, there are company goals, ओके right? Every year companies set up their goals. They take it down to employee level, right? That comes down to their senior executives, उनके goals क्या हैं, their goals have to tie back to them. Then their managers have to tie back to their bosses' goals. तो इस तरह it basically trickles down all the way to the organization. उसके बाद आप उसकी एनुअल बेस पे उसकी परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की रिव्यू होती है. आप एम्प्लॉय से कहते हैं कि भाई अब तुमने इन अगेंस्ट तुम्हारे जो गोल्स थे इनके अगेंस्ट तुमने क्या परफॉर्म किया, तुमने क्या डिलीवर किया. तो वो आप फिर आपका होता है एनुअल प्रोसेस. बास कंपनीज करती हैं क्वार्टरली रिव्यूज़ करती हैं, बट आई थिंक दैट्स टू मच. बट द प्लेटफॉर्म वाज बिल्ट फॉर क्वार्टरली और हाफ बाई ईयरली और ईयरली रिव्यूज़. उसके बाद आपका होता है परफॉर्मेंस रिव्यू होने के बाद फिर आपकी होती है रैंकिंग एंड रेटिंग. ओके This concept only GE used. या Most companies don't have the guts to do that. True. Which basically means then after then you score everybody and you put them in this bell curve. ओके All right? So based upon their performance, either they are top performers or a bottom performers or one in the middle, right? This is where I go back to the GE world. GE world के अंदर this was given कि जो आपके top performer होंगे, इवन उनकी जो सैलरीज होती थी, जो टॉप परफॉर्मर्स होते थे उनको एवरेज 7 to 10% इंक्रीज मिलता था. नाइस. जो मिडल में होते थे उनको 3 से 5%, 3% से 4% का. जो बॉटम होते थे वो 0, सही बात ही ख़त्म. तो इस तरह दिस वाज द बेल कर्व. एनीवेज, तो उसको फिर आप रैंकिंग एंड उससे होता है कि आप एम्प्लॉय से कंपेयर करते हैं दूसरे से. आप कहते हैं कि तुम्हारा ये टॉप परफॉर्मर तुम्हारा टॉप परफॉर्मर है, आर वी पुटिंग हिम इन द राइट बकेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर बेल कर्व्स. अच्छा, वो सारा उसमें था. फिर सक्सेशन प्लानिंग. ऑल ऑफ योर की पोजीशंस इन एनी कंपनीज यू नीड टू ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव ए सक्सेशन प्लान. सो द प्लेटफॉर्म हैज़ ऑल दिस कैपेबिलिटीज़ कि जी मेरा फलाना एम्प्लॉय जो है, मतलब फलाने रोल के लिए मेरे पास अभी कुछ उसका सक्सेसर कौन है, क्या अभी तैयार है या 3 साल बाद तैयार होगा, या कोई है भी कि नहीं, ये गैप ही है, which means that if something happens to this person, yeah, of course. And then once you have identified कि इस बंदे की परफॉर्मेंस दी गई है एनुअल उसमें उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, तो जो वीकनेसेस हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए किस टाइप की डेवलपमेंट चाहिए, राइट? उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वीकनेस है, उसकी कम्युनिकेशन वीकनेस है, जो वीकनेस उसके हिसाब से उसकी डेवलपमेंट प्लान बहुत ईजी हो जाएगा एम्प्लॉय के लिए अपनी वीकनेसेस और अपनी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसी होता है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते वीकनेसेस. तो ये इट वाज अ वेरी गुड थिंग कि वो ईजी हो गया बंदे के लिए अप्लाई करने नहीं, एक जो और जो चीज़ है, नॉट इज गेटिंग इंटरेस्टेड, एक चीज़ मैंने नोट करी कि ये सारी जो चीज़ें थी, ये प्रोसेस जो था ये जी में होता था, बट वो डिजिटाइज नहीं था. ठीक है, Exactly. अब क्या हो रहा है कि अब वो लिमिटेड टू जी था, जी के अलावा कोई nobody else has to do that. Few other companies did that. Some big companies, but but yeah, common like I नहीं said, था ना. yeah, common नहीं था. But the big companies who can afford, people and HR professionals and so on and so forth, they could do that. Small, So one mid-sized of the companies best may- systems में से एक सिस्टम आ गया, assessment system, which is a talent management thing. अब वो होने जा रहा है digitize. Right. So वो plus जो कहते हैं ना, वो plus Plus, बनाना. the last factor, probably just as important, it was affordable. मैंने कहा ना, it could be managed by one person HR department, and it's affordable, right? So this was, लेकिन उसमें जो प्लेटफॉर्म जब डिज़ाइन किया था तो उसमें कुछ उसकी फीचर्स थे, मतलब उसकी कुछ आर्किटेक्चरल उसकी एलिमेंट्स थे. फॉर इंस्टेंस, कंपनी ए एंड कंपनी बी अग्री कि वी आर बोथ will interact with each other. Okay. So think of it as a super LinkedIn.
where actually it's a LinkedIn of companies. LinkedIन होगा Right? तो मैं और ये सर कब कंपनी डेवलप हो रहा है? ये 2013-14 में, ओके 12-13 में. अब मैं ये कहता हूँ जी कि मेरी कंपनी एंड आई अलाउ माई एम्प्लॉयज़ टू इंटरेक्ट सोशली विद कंपनी B, C, D and E. ओके लेकिन मैं उनको अलाउ करता हूँ कि दे कैन ओनली सी सर्टन प्रोफाइल्स, सर्टन लेवल ऑफ डिटेल्स एंड अदर्स यू कैन नॉट सी. हमने वो सारे उसमें बिल्ड किए हुए थे. व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है, मैंने वो जो सिनेरियो था ना उसका, जब वो ब्रिजिंग एकेडमिया इंडस्ट्री का वो जो इवेंट वो हुआ जो आप उसके बाद, इवेंट अटेंड कर रहे थे आप सो आई वाज हियर. तो आई वेंट टू सी. सब ओके तो मैंने उनसे बेसिकली पूछा कि आप दे वॉज ज़ैबिस्ट के थे वो प्रेसिडेंट. ओके मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी आप अपने प्लेसमेंट्स कैसे करते हैं स्टूडेंट्स की. ओके तो मुझे उन्होंने उनकी जो प्लेसमेंट की हेड थी खातून, उनको बुलाया. वो आई, उनके साथ उन्होंने 2-3 रखी हुई थी वो जो स्टूडेंट की मैनुअल होती हैं कि जी हम स्टूडेंट्स हैं, हमें अपने CVs देते हैं, फिर हम उसको फॉर्मेट करते हैं, फिर हम उसको प्रिंट करते हैं, फिर ये बुक्स ले जाके वही हम ओल्ड distribute प्रैक्टिसेस करते हैं. जो ये फॉलो old practice होती रही है, है। फॉलो वही हो. अब मैं सोचूं यार किसके पास टाइम है. अब उसके पास ज़ैबिस की बुक भी है, उसके पास लम्स की भी है, उसके पास IBA की भी, उसने किसी ने खोल के पेजेस देखने हैं बिल्कुल भी नहीं पेपर करना है, select सही करने के लिए. सो दैट वाज प्रीटी ऑब्वियस. फिर मैं गया के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफ HR थे. मेरी उनसे मुलाकात हुई. मैंने उनसे कहा जी आप किस तरह हायर करते हैं. ओके सो वो मुझे कहने लगे जी कि उन्होंने बुलाया अपना जो उनका जो रिक्रूटमेंट का हेड था उसको, वो आया. मैं बड़ा अच्छा कहने लगे जी हम लोग वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट वंस हु रिक्रूट स्टूडेंट्स ओके इन पाकिस्तान. और ये कि बिटवीन February एंड May और समथिंग लाइक दैट वी आर सुपर बिजी. हमारे पास सर को जाने को टाइम नहीं होता. और तो मैंने कहा आप कहाँ रिक्रूट करते हैं. कहने लगे जी हम सिर्फ लाहौर और कराची कर पाते हैं क्योंकि इज़ वेरी बिजी. बाय दैट टाइम देखिए मैं जब निकला था इस मुल्क से तो शायद 9 या 10 यूनिवर्सिटी थी, शायद 9 भी नहीं थी मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में. बाय दिस टाइम आई सॉ कि कराची में 23-24 थी, लाहौर के अंदर 22-23 यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं बहुत. मैंने कहा चलो दैट्स 35-40-50 यूनिवर्सिटीज़. कम टू फाइंड आउट कि एक्चुअली दे ओनली रिक्रूटेड from LUMS and UET and IBA and NED. So the tier 1 university Tier 1 यूनिवर्सिटीज जो राइट. तो मेरे जहन में ये था कि यार जो बेचारा गिलगित बल्तिस्तान में या सरगोदा में या गुजरात में या बलोचिस्तान कोयटा में उसको तो मौका नहीं मिला. And so this was very important for me. It was very important for me that we liberalize, we democratize the opportunities. तो मेरे ख्याल में opportunity should not be a privilege, should be a right. True. Right? It's not a privilege, it's a right. राइट. Now, अब वो जब and everybody should have that access. अब उसके बाद उसको मिलती है नहीं मिलती ये उसके ऊपर है. जो ओपन का जो इवेंट हो रहा था here in Pakistan. here in Pakistan, तो वहाँ पे मैंने like I mentioned कि they were basically the subject was bridging academia industry gap. वहाँ पे स्टूडेंट्स ऑडियंस में थे बैठे हुए, लेकिन स्टेज पे हमारे पास 2 ग्रुप्स थे. एक तो एकेडमियस के जो आपके VCs डायरेक्टर्स थे, कोई 5 या 6 मेरे याद पड़ते हैं, और दूसरी तरफ बैठे हुए थे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स. मेरे भी तक याद है शान जो है शान मसाला, उसके CEO भी वहाँ मौजूद थे. सो देयर वाज अ डिस्कशन एंड इट वाज सो ऑब्वियस दैट दे वर बोथ ब्लेमिंग ईच अदर. जो कॉर्पोरेट साइड थी वो कहते थी कि हमारी जो डिमांड है आप वो डिलीवर नहीं करते, आपकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो उस क्वालिटी की है ही नहीं जो हमें चाहिए. और जो एकेडमिक्स थे उनका ये पॉइंट था जी आपने कभी हमें बताया नहीं कि आपको चाहिए क्या है. सो इट वाज प्रीटी ऑब्वियस टू मी सिटिंग इन द ऑडियंस कि वो जो पीछे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए दे आर द वंस हु आर गोइंग टू सफ़र. राइट. आई मीन इन दोनों की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में उनका बेड़ा गर्क है. बहरहाल दैट टाइम आई डिसाइडेड कि एक्चुअली द प्लेटफॉर्म हमने जो आर्किटेक्ट किया हुआ था उसमें यू कुड हैव nth नंबर ऑफ एंटिटीज़ डिफाइंड, जो कि हमारे जहन में था कि दे वर बेसिकली कंपनीज, कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉयर्स थे. लेकिन एक्चुअली वी कुड हैव just as easily use some of them as universities and we could connect them within that platform. So I went to meet with the rector or I guess the president of Zabist at that time. बड़ी अच्छी मुलाकात हुई. उन्होंने बुला लिया अपनी
जो उनकी प्लेसमेंट्स की हेड थी. एंड सो शी एक्सप्लेन टू मी जी कि हम स्टूडेंट्स जो हैं हमको अपने CVs देते हैं, हम उसको फिर कन्वर्ट करते हैं अपनी फॉर्मेट के अंदर, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, फिर हम उसको प्रिंट करते हैं, देन वी गो डिस्ट्रीब्यूट दोज बुक्स. एंड यू नो इट वाज ऑब्वियस टू मी कि अगर ज़ैबिस्ट और उसके अलावा 50 दूसरी यूनिवर्सिटी ऐसी बुक्स भेजते हैं तो वो जो HR के लोग हैं उनके तो कमरों में शायद मुतद्दे लगे हों बुक्स के बेसिकली, एंड नोबडी इज़ एवर गोइंग टू नो कि उसके अंदर किसका CV ढूंढना है. So I knew there was a way to fix that problem, and then I met with the head of HR for a large company in Karachi, and they explained to me, and his team explained to me. I guess, sir, there was हाँ जी, तो उन्होंने मुझे explain किया कि जनाब हम जो हैं we recruit, we are the largest recruiters of fresh college graduates. And we do it in Karachi and Lahore because we have no time to do for the rest of the Pakistan. And I realized that by this time Karachi and Lahore had collectively 45-50 universities. मैं जब निकला हूँ तो उसको शायद 8 या 9 यूनिवर्सिटीज़ पूरे पाकिस्तान में थी, but now they had grown. So I said, okay, that makes sense. But come to find out that they only recruited from I believe LUMS and UET in Lahore and NED and IB in Karachi. So that made me realize कि यार जो बच्चा गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा या सरगोदा या गुजरात में है उसका तो चांस ही कोई नहीं हुआ. Right? He never had the opportunity. And I really believed कि opportunity is a right. Right? It's not a privilege. And so how do we ensure कि हमारा जो platform है it creates an even playing field for everybody. So this was the now all of a sudden kind of a switch कह लें या उसको slightly change in direction from just the corporate talent management and talent development to actually the entire education sector. एक और So product this आ गया was था a उसके अंदर. so एक और product नहीं, it's just जैसे कहते हैं ना कि एक movement थी, slightly direction थोड़ा सा change हुआ कि we actually expanded from just the corporate into education. And so then we had that entire feature set that we developed. उसमें recruitment का फिर हमने उसमें recruitment के features दिए कि जो employee आपके जो applicants हैं उनके credentials को tracking करना, और फिर ये कि जब आप उनका इंटरव्यू प्रोसेस होता है तो what were the reasons why they were rejected if they were not accepted. And so as we created this linkage between the university and the workplace, now the universities knew, or the higher education institution, they would know कि हमारे कितने students कहाँ पर गए इंटरव्यू देने के लिए, कितने जो accept हुए, कितने reject हुए तो क्यों हुए, and that's a data that is very useful. So that was now we started developing that whole feature set in there. अच्छा, तो ये तो recruitment का basically aspect आ गया. Then we realized also कि there is a need for developing mentoring features. चूँकि ये जो student है, it needs some non-academic, non-classroom learning also. In my experience, again, the difference between a very successful corporate leader, business leader, person who is successful, and the one who just average, is a mentor or set of mentors. And so we then created feature set कि जहाँ पर a student from say a freshman from a small university could actually be mentored by some senior student from another university, or a student that is about to graduate could get a mentor in industry. याद रखें हमारा जो platform है, it's an ecosystem, right? It has multiple entities existing, and therefore we can create linkages between people or individuals within those multiple entities together. So we did the entire mentoring feature set. And the mentoring, the way it works is कोई student है, for instance, वो कहता है जी there is a problem that I'm facing and I need somebody to guide me. And basically very simple, वो डालता है, system जो है वो उसकी experiences, उसके interests को match करता है a potential mentor से. Now basically in your profile आप
उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि आई वांट टू बी अ मेंटोर, आई वांट टू बी अ मेंटी, आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब. वो सारे चेक बॉक्सेस हैं बेसिकली, और उन चेक बॉक्सेस के बेसिस के ऊपर सिस्टम आपको फिर अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है एंड गिव्स यू दोज फीचर्स. तो मेंटोर जो है दे आर बेसिकली असाइंड बाय द सिस्टम, and then it requires the mentor to agree to mentee, and then during their relationship there are some basic questionnaires, just to make sure that we can measure the engagement, right? Okay. How did the engagement go, for future references. So this whole feature set that was that was put in. In the meantime, then as we created the mentors, the mentees, remember there is a whole logical build up of alumni. आज का स्टूडेंट कल का alumni है. So there was a logical way of saying कि जो निकल गया, the one who is experienced can actually come back and help the current student. In most of the in most of the alumni engagement जो होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनमें universities, they may every quarterly or something they give a newsletter, या हो सकता है वो annual dinner कर देते हैं, they have to do fundraising, but there is never an interaction between the former students and the current students, right? Yeah. So platform हमारा जो है वो actually enable करता है as a social engagement between the former and the current students. So that's a big feature set in there. So ये आपका ये हो गया. So in the meantime, I'm also in my personal, in my professional career, I had the opportunity to join FIA, Pennsylvania Higher Education Assistance Agency. अच्छा, a little bit of background. जो FIA actually back in the 62 time frame में, when Kennedy wanted to send a man to the moon, they actually encouraged the states. In the US, basically education is devolved at states level, right? It is not a federal function. So the states were encouraged to create grants, fundings for students so they could go for higher education. Because there were not very many people in the US, they were really going for colleges and universities. So in that process, Pennsylvania जो था, उसकी जो agency थी, this was this agency. And they had a very large operation. What they were actually doing, they were providing student. So in the U.S., student financial जो lending है, it's a very large scale. I believe it's about a 10 billion budget होता है, $10 billion US budget जो है, that every year is given to students as student loans. So after the loans are granted, then FIA along with few of the other loan servicers, they would take over those loans and then they service them for the duration until they're all paid. Mm-hmm. So we had about 13.5 million student borrowers, and the total worth of assets was about $435 billion. Okay, your student loan assets. This is what we managed. And my responsibility was the entire technology stack as well as operations, जो customer centered जो operations थे उनको manage करने के लिए. That was all under me. So I was able to sort of, whatever learning took place over there is what I was able to now think, okay, how can we take it to Pakistan? Now there was something very interesting. Around that time, I also had a friend of mine. He was from UAE in Dubai. I was visiting him in his office, and he came to me and he said, "Ke Mubashir, I want to give some zakat. So where should I give zakat to?" And I thought, man, what an open-ended, broad question. I mean, how do I know who to give it to? बहरहाल हमारी बातचीत हुई तो मैंने उससे कहा, देखें यार, दो तरीके हैं. एक तो आप किसी को खिला दें, किसी की ज़रूरत पूरी कर दें, एक वो तरीका है. दूसरा ये होता है कि आप किसी को एजुकेट कर दें, वो सदका जारिया है, दैट कैन गो लॉन्ग वे. उसने कहा, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. मैंने कहा उसमें ये है कि एक तो अर्ली एजुकेशन है, जो कि आपके बच्चे जो कभी दे विल नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल, आप उस पर लगा दें अर्ली एजुकेशन पे, या आप उस पर स्पेंड कर दें जो आपके somebody who has already gone through education, now he is in a university or someplace, has a few years left before they actually can get on their own and start supporting their family.
So he said that that's the second group that I would like to support. So that's when we developed these features in platform where anybody could create a grant or a scholarship, right? A need-based or a a need-based grant या उसकी जो scholarships हैं Scholarship grant. right? And they could create and they could define a criteria कि जी मैंने इस प्रोग्राम को फंड करना है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्ला ब्ला या मैंने ये कि उनका और ये कि मिनिमम उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या हो हम those kind of criteria they can define. System automatically matches with the profiles of the students who are already in the system who are looking for financial aid, and then this person get to pick who they want to look at. 2 या 3 जो भी candidates हैं, they can check. the university के साथ जो है एक admin जो है वो उसको respond देता है कि जी ठीक है, मतलब he can validate or confirm उनके जो transcripts और जो हैं, and then that person can directly give funds to that university जहाँ पर कि वो student पढ़ रहा है. So this feature set we built in for current students, for the student who are already in the system. So sir, ये वाला जो सिस्टम था आपका, ये सारे लैंडिंग वगैरह, ये वाली जो फंक्शनैलिटी थी, ये थिंकिंग सारा सब कुछ होते फिया से आपने सीखा था. Right. So these are personal experiences. So one of the things that I tell people, people who are solving problems, their solutions that they come up with, there is a correlation between their experiences. True. जो उनके lifelong experiences होते हैं उसी को लेके, because that defines their thought process and their thinking on how to solve particular problems. हर कोई एक्सपोजर के लिए कुछ कर रहा होता है कि एक्सपीरियंस आते रहें, एक्सपोजर आते रहे, तो फिर उस तरह अपने आप को लाइफ में प्रैक्टिकल करते रहें. Yeah, I mean, चूँकि देखें ना, we know what we know, and based upon what we know is we come up with a solution. Yes, agree. And that's a function of experience, that we have. So we did that financial aid. Then we looked at a situation. Okay, how can we have a single application by a student that they can apply in multiple universities? So that's where Colaris admission came in. That's where the Colaris admission functionality that came in. और उसके 2 aspects हैं. उसका एक तो aspect ये है कि जी जो कोई भी स्टूडेंट है हाई स्कूल का या कॉलेज जिसे हम कहते हैं यहाँ पे, कॉलेज स्टूडेंट है, उसने he come in and based upon their interests in what programs and their financial limitations की बेस पे कौन सी यूनिवर्सिटी सूट करती हैं, उन्होंने पिक कर ली वो यूनिवर्सिटीज़. Then they go in and they fill a simple application. अच्छा, एक एप्लीकेशन उसने भरनी है. तो उसने एक एप्लीकेशन भरनी है, राइट? ठीक है. एंड देन सिस्टम सेज कि तुमने ये इन यूनिवर्सिटीज़ में इन प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट शो किया था, ये तुमने एप्लीकेशन भरी है. When you push the button, the admission officers in all those universities can now see that application. Nice. And then it's their job to basically convince them to join their, come to their university. Basically, अब पावर जो है वो स्टूडेंट के पास है जो यूनिवर्सिटी में जा रहा है. ठीक है, अब वो कंपेयर भी कर सकते हैं मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है. Right. मैंने अपनी सारी बेसिकली सारी फिल्टर डाल दी मैंने अपनी उसके अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर. मेरी ये नीड है, दिस एंड दिस, मैंने ये करा हुआ है. नाउ फाइंड द बेस्ट मैच फॉर मी. मैंने जो प्रोग्राम करना. अच्छा सर, बाय द वे ये जो सर्च हम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म Colaris एडमिशंस के ऊपर, ये प्रोग्राम वाइज सर्च कर रहे हैं हम कि मैंने क्या पढ़ना है. Correct. So आपको मतलब for instance you want, देखिए आप let's say you go to a university that has computer science and mechanical engineering. Okay. And you say कि मेरा इंटरेस्ट दोनों में ही है. Okay. अब आपकी फर्स्ट चॉइस जो है वो कंप्यूटर साइंस है, दूसरी आपकी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट? सो सिस्टम जब आप अगर उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन ऑफिसर देख रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स एंड योर क्रेडेंशियल्स, अगर अगर आप फिट होते हैं पहली चॉइस में तो उसने आपको वहाँ दे दिया, नहीं हुआ तो फिर उसने आपको सेकंड चॉइस में दे दिया. आपकी प्रेफरेंस के साथ. So basically वो भर रहा है अपना प्रोफाइल and then he's applying to various universities. Correct. So you can apply in multiple universities. अच्छा, अब इसके अंदर सर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक यू प्रीवियसली मेंशन के आपके जितने भी फीचर्स अच्छा ये जो फीचर्स है इससे पहले हमने जितनी भी बातें करी वो सारे डेवलप हो चुके हुए थे. Correct. ये अब आप एडमिशंस कर रहे थे. अच्छा, अब जो सर एक प्रॉब्लम है ना पाकिस्तानी एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो सबसे बड़ा ये है कि जब कोई बंदा एडमिशंस के लिए जा रहा होता है ना, तो वो अपने सारे हिसाब किताब सीधे कर लेता है कि वो जो है मैं कर पाऊंगा, ये मैं ऑप्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. ठीक है ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने भी ये चीज़ वो करी है. सो अब आपने फाइनेंशियल लैंडिंग वाली फंक्शनलिटी डेवलप कर चुके थे, आप सब कुछ कर चुके थे. अब अगर स्टूडेंट, मैं अभी करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, अब अगर
कोलैरिस एडमिशन्स के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ एंड आई एम अप्लाइंग टू अ यूनिवर्सिटी, बट मेरे पास एक लिमिटेशन है, फाइनेंशियल लिमिटेशन है, तो क्या मैं उस चीज़ को ऑप्ट कर सकता हूँ, वो जो लैंडिंग थी और वो सारी जो फंक्शनैलिटी थी? सो देखिए, अभी हम उसको फर्दर उसको एक्सपेंड कर रहे हैं. ठीक है. वो ये है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ कमिंग इनटू द फ्यूचर, राइट? सो राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी हैव, Okay. and then what is the next problem that we are trying to solve, right? Or the next problem that we are trying to solve is, and I'll come to that. So just to narrow down, तो ये जो admissions का जो है, देखो फ्रंट एंड पे तो स्टूडेंट ने अपनी चॉइस के हिसाब से कर दिया. ऑन द बैक एंड जो यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन ऑफिसर्स हैं ठीक है. और जो फाइनेंशियल एड ऑफिसर्स हैं, दे ऑल्सो हैव टू मैनेज देयर फाइनेंशियल एड बजट्स, राइट? कि ये हमने इतना पैसा एलोकेट किया हुआ है, इस प्रोग्राम के लिए इतना किया, इस एलोकेट इस यहाँ के लिए किया, इतनी स्कॉलरशिप्स हैं, इतने लोन्स हैं, सो एंड सो फोर्थ. तो सिस्टम एक्चुअली अलाउज द एडमिशन एंड द फाइनेंशियल एड ऑफिसर्स ऑन द बैक एंड ऑल्सो टू मैनेज देयर अफेयर्स. ठीक है. तो एक तो ये कि सो वो एक उसकी होलिस्टिक अप्रोच हम लेते हैं इसकी एडमिशन्स की. नाउ अब आपका क्वेश्चन है अबाउट द फाइनेंशियल एड. टू मी दैट्स द नेक्स्ट फ्रंटियर. अभी तक हम जो कर रहे हैं वो यही है कि एनी इंडिविजुअल और एनी इंस्टीट्यूशन कैन क्रिएट फाइनेंशियल ग्रांट्स, एड्स और व्हाट हैव यू फॉर एग्जिस्टिंग bodies, and system matches and they can opt for that. अब जो है, अब हम ये देख रहे हैं एक्चुअली हाउ डू यू क्रिएट और हाउ डू यू सॉल्व ए लार्जर प्रॉब्लम. अब पाकिस्तान में there are millions of students, very large percentage of students have issues of the availability of funding and so on and so forth. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए I go back to my thing about it takes a village to raise a child. Yes. It takes multiple entities to solve this problem. इसमें universities भी हैं, इसमें donors डोनर्स हैं, भी बहुत हुआ. इसमें financial institutions भी हैं. They all have to come to, and इसमें जो borrow कर रहा है जो student, उसकी भी उसका होना भी must है, right? Yeah. So it cannot be a charitable case in every situation because then that will not last very long. तो हम उसको अभी इसको इस तरह देख रहे हैं कि how do we bring all these 3 plus the student itself, उनको लेके आएँ और ये कि एक broad framework तैयार किया जाए with the help of, like I said, the universities, the financial institutions, to come up with a student lending scenario, right? अच्छा, अब उसमें बात है, ज़कात can play a role for those who are entitled to zakat, right? But then there are those who are not, so उनके लिए क्या किया जाए? But all these things will come together, and inshallah in the coming couple of months or so, we will actually be coming out with a framework with many of these institutions and the governing bodies that we talked about. They will work with us. So one thing I Solve the observed in Pakistan is that हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है स्टूडेंट लैंडिंग का. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम. दैट्स व्हाई मैं इतना कोलैरिस के बारे में बातचीत कर, बहरोज से भी मैं कह रहा था, नोबडी हैज़ दिस मैकेनिज्म. ठीक है, हर चीज़ के लिए बंदा उधार वैसे पाकिस्तान में ले सकता है, एजुकेशन के लिए नहीं हो. अच्छा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है कि वापस कैसे आने. कोलैरिस हैज़ दिस मैकेनिज्म कि वो कैसे उसको बच्चे को पैसे पहुँचाएं. अच्छा, अब इसके अंदर एक बहुत अच्छा एंगल ये है कि दोज हु आर इंटाइटल्ड टू ज़कात, जैसे आपने भी बात करी, दोज आर द वन हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फंड्स इंजेक्ट कर रही हैं. एक तो ये हो गया आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक हो गया आपके डोनर जो ज़कात, वो सारी चीज़ें करनी है. तीसरी यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, वो भी डोनेट वो क्रिएट कर सकती है, मतलब मेरिट बेस्ड स्टूडेंट. अब वो यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है कि वो किस तरीके से उसको कंपेंसेट करना चाहती है. देखिए, अभी तक जो हो रहा है ना काम, ये हो रहा है वेरी मच इन साइलोस. कुछ लोग लैंड कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रांट्स कर रहे हैं, कुछ लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कुछ, लेकिन होलिस्टिकली दे आर नॉट बिकमिंग 1 + 1 = 11. दे आर बिकमिंग 1 + 1 2. सही कह रहे हैं. और ये जो आई मीन इट्स अ फैक्ट कि जो इसके लिए कोलैटरल क्या देंगे आप, राइट? आई मीन जो भी आपको पैसा देगा उसने कहना है भाई मेरा पैसा वापस कैसे आएगा, वापस कैसे आएगा. सो बट देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर दैट. अगर आप देखें तो एक मैकेनिज्म जो आप अगर आप देख सकते हैं, एग्जांपल अखुवत का जो मॉडल है, द वे अखुवत ओवर द लास्ट 15 years or so has given out loans to people to set up their businesses, and they got their money back. I mean, they have very high percentage, almost 100+%
उनके जो लोन वापस आ जाते हैं, वो कैसे आ जाते हैं वापस? सो बेसिकली आई बिलीव पीपल आर नॉट देयर टू ट्राई टू चीट द सिस्टम. इफ़ यू हेल्प देम दे वुड लाइक टू एक्चुअली बी रिस्पॉन्सिव. लेकिन हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है कि जिसके अंदर के ये तमाम प्लेयर्स उसमें प्ले करें, डोनर्स भी हों, यूनिवर्सिटीज़ भी उसमें पार्टिसिपेट करें, लेंडर्स भी हों, लेकिन यार इंटरकनेक्टेड हो. Yes. ट्रू एक और जगह सर ये अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी कि चीट हो जाने चीजें समवन हैज टू डू इट. यार हेल्प कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर किसी की करता है तो उसके दिमाग में ये हो जाना है तुम करिए आई हैव टू पे बैक, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी. बिल्कुल. And I fundamentally believe that people they don't look forward to cheat, right? I mean, this is something, and so why when look at it that way? लेकिन I'm sure हमारा जो mechanism होगा हम उसमें we will safeguard the lender also. आपने जैसे कहा कि like alumni can even create jobs. Actually they can create jobs for the existing students from wherever they have graduated. जो current student university में enrolled है, is there any kind of opportunity for them through Colaris कि वो पढ़ भी रहे हैं और वो जॉब भी कर रहे हैं? Is there something on the platform? So very good question. Yes. Actually, so वो जो हमने जो placements की जो बात की थी अब now, so that's the other feature set, right? How do we get various employers encourage them to bring out scholarships and to bring out internships, for instance. उसमें हम एक प्रोग्राम है, हम उस पर अभी काम करना शुरू करेंगे, तभी हमने शुरू किया नहीं है उसके ऊपर. वो ये है कि बेसिकली वी विल बी गिविंग हमारा जो पूरा फीचर सेट जो हमने डेवलप किया हुआ है अराउंड टैलेंट एंड रिक्रूटमेंट के ऊपर, वो हम एम्प्लॉयर्स को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. या आप इसको यूज़ करें अपनी पीपल डेवलपमेंट, पीपल मैनेजमेंट के लिए. ऑल वी आर आस्किंग कि आप इन रिटर्न आप स्कॉलरशिप्स क्रिएट कर दें स्टूडेंट्स के लिए इन योर ओन नेम, राइट? तो आपकी ब्रांडिंग हो जाती है, यू हैव डन समथिंग गुड, यू शुड गेट क्रेडिट फॉर दैट, राइट? लेकिन आप हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में आप उसको यूज़ कीजिए अपने उसके लिए डेवलपमेंट के लिए. एट द सेम टाइम उसके लिए आप हमको पे नहीं करेंगे, आप उसके लिए स्कॉलरशिप्स क्रिएट कर दें, इंटर्नशिप्स क्रिएट कर दें आप. सो वी विल सी हाउ दैट प्रोग्राम गोज़. Again, I think people will respond to that. I mean, this is something as in scholarship. I'm asking is somebody who can actually earn from the platform. मतलब जैसे कोई work study employment. Yeah, something like that. जैसे कोई tutoring का हो गया, anything like that. So देखें एक चीज़ तो I forgot to mention, हमने एक we had a almost 80% completion of this feature set called actually coaching. हम उसे कहते थे. और वो यही था कि ये जो प्राइवेट ट्यूटरिंग जो होती है, राइट, लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स डू द ट्यूटरिंग और बच्चों के लिए करते हैं जो भी है. सो वी एक्चुअली हैव क्रिएटेड ए होल ट्यूटरिंग सबसेट ऑफ द प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे स्टूडेंट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या इवन प्रोफेसर्स कोई और है, इफ़ दे वांट टू डू वन ऑन वन ट्यूटरिंग, वो भी कर सकते हैं. दे कैन अर्न मनी for that, right? So and that feature said so about 80% completed and 20% sitting on the dock. लेकिन ये कि so that completes probably the ecosystem also. Okay, so to be clear, Colaris is a global portal and has covered almost 4 to 5 modules, and we are expecting more to come. हाँ जी. सो अभी जो हम उसको बेसिकली अगर आप प्रोडक्ट उस हमारे उस पर जाएँ प्लेटफॉर्म की उस पर, तो आपको 4 दिखाई देंगी प्रोडक्ट्स. आपको दिखाई देंगी एडमिशन्स, राइट? मैंने बात की कि सारे एडमिशन्स के फीचर जो हैं स्टूडेंट्स के लिए वो सारे उसमें. फिर आपको दिखाई देगा एक क्या होता है स्कॉलर्स. तो उसमें ये जो करंट स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनके लिए जो मेंटरिंग का फीचर है, अलमनाई एंगेजमेंट का फीचर है, प्लेसमेंट्स के फीचर हैं, फाइनेंशियल उसके जो है स्कॉलरशिप के फीचर, ये सारे हमने उसमें हैं. दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. Everything in one tab for a student. Right. That's a good that is thing for all everybody. students and it's free of cost. Okay. So the third product is so पहली हुई again admissions, दूसरी हुई scholars. तीसरा जो है वो है अभी हमने बात की वर्क प्लेस की, right? Yeah. वर्क प्लेस के अंदर तमाम बेसिकली फ्रॉम एन एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू, इट कुड बी इवन यूनिवर्सिटी एज एन एम्प्लॉयर, राइट? उनकी एबिलिटी टू मैनेज देयर टैलेंट एज वेल एज देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये सारा वर्क प्लेस के अंदर है. जो चौथा एलिमेंट है जिसको अभी तक हमने कवर नहीं किया वो है
जिसे हम कहते हैं कैंपस मैनेजमेंट। जो कैंपस है उसके अंदर बोथ LMS है, राइट, वी हैव ए वर्ल्ड क्लास LMS बाय द वे, दिस LMS इज़ यूज्ड बाय सम ऑफ द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़, वो उसमें पूरा है अवेलेबल, एज वेल एज जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है पूरा स्टूडेंट मैनेज करने का, क्लासरूम्स एंड एवरीथिंग एल्स, वो सारे फीचर्स उसके अंदर हैं, वो कराता है कैंपस। But that is strictly for a university, right? How they run their affairs, how they digitize their processes. So basically यूनिवर्सिटी का पावर है, स्टूडेंट क्या क्या कर रहा है, किस किस चीज़ का उसको एक्सेस है, Yeah. तो दे कैन अलाउ, और ये इंटरेक्ट, अच्छा बिटवीन द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं? So देखें LMS CMS नहीं कर सकते, ठीक because है। they are Restricted only for that university. Okay. That's their ERP basically, अगर आप यूज़ करें वर्ड। लेकिन वो जो दूसरे जो हैं उसके ऊपर जो कर रहे हैं, स्कॉलर्स हुआ जिसमें यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स अक्रॉस मल्टीपल यूनिवर्सिटीज कैन इंटरैक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फॉर इंस्टेंस एक चीज़ उसमें जैसे इट्स अ यूज़ केस, वो ये है कि आपकी स्टूडेंट बॉडीज़ हैं, राइट, आपकी स्टूडेंट आपकी सोसाइटीज़ हैं, आई एम सॉरी सोसाइटीज़, राइट, आपकी डिबेट सोसाइटी है, IBA में डिबेट सोसाइटी है, पेशावर यूनिवर्सिटी में डिबेट सोसाइटी है, लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में। Right now they're all silos, right? So sir, can they all come together? Yeah. So in Scholars, what we can do, and that's a feature set, कि you create a community of debate society. Okay. And all Got it. जितने भी universities की societies हैं, they all basically use that as a social interaction, but a subject specific, right? वो उसको use कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें सर एक मेरा सवाल है, लाइक हम ये जो मैं समझ रहा हूँ ना, वो ये समझ रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी की सोसाइटी है, ठीक है, वो एक फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में बनी हुई थी, ठीक है, अब उन्होंने एक और सोसाइटी बनाई, यूनिवर्सिटी A और यूनिवर्सिटी B दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू दैट प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब इसमें ये रिस्ट्रिक्टेड टू क्या कहते हैं कंट्री लेवल है क्या, या फिर USA के अंदर कोई बैठा हुआ है वो इज इंटरेस्टेड इन डिबेट सोसाइटी, वो भी वहाँ पर है, मैं भी वहाँ पर आ गया हूँ? It's anywhere, right? So ये तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ओके, सो बेसिकली एंगेजमेंट में कर सकते हो ग्लोबली Exactly. अपने इंटरेस्ट के लोगों से, मतलब Yeah. जिन So जो so these are interest based communities, right? ओके, And you can create that. I mean उसके अगर आप उसको फीचर्स अवेलेबल कर दिए, पॉइंट ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फीचर अवेलेबल है, ठीक है, यूज़ केस क्या है उसका। मैं आपको एक और यूज़ केस बताता हूँ, मतलब इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ये है कि टीचर्स 8th grade teachers who are preparing their class, जो क्या होता है प्लान, जो क्लास प्लान तैयार करते हैं, Class weekly timetable. planners हैं उनके। yeah, weekly planner. So somebody who's sitting in Karachi, 8th grade, and needs help from an 8th grade teacher in say Houston, US. They can connect. They can create a community for 8th grade Global teachers, yeah, what have you, Yeah. or somebody from Johannesburg, somebody from London, from somebody Karachi, somebody from Jamshoro, right? Anybody can actually play in that, right? So ये इंटरेस्ट बेस है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ना वो है पीपल डेवलपमेंट। हमारा डेवलपमेंट जो है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि आप मूवीज करें डिस्कस बैठ के उसके अंदर, या आपने कोई यहाँ पर्पस उसका ये है। सो बेसिकली अब इसके ऊपर ही कोई वॉच डॉग या कोई क्या कहते हैं मॉडरेटर होगा या कम्युनिटी इंगेजमेंट ऑफिसर होगा, दो विल मॉनिटर के वो सारी सब चीज़ें। So the communities can be developed, and you can create community monitors, like you said, जो कि कर सकते हैं उसको। So the features हमने available कर दिए हैं। सर कैंपस पे मैंने आपका फीचर देखा है, दैट इज मीटिंग। Yeah. So we don't have to go to Zoom or any other application within Colaris platform. We can actually have the meeting, or the teachers हैं वो अपनी class के lectures using the same platform, they can utilize that. Would you like to tell something so- more about that? I'm glad you mentioned that, क्योंकि so देखें, people don't realize एक ज़माने में Zoom फ्री में दिया करता था, बिल्कुल Yes. ऐसे right? COVID-19 से हाँ, पहले ही बिल्कुल। वो सबको फ्री में मिलता था फॉर टीचिंग पर्पसेस के लिए, बिल्कुल, right? yes, For teaching. एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फ्री में मिलता था। लास्ट ईयर जुलाई में या जून में ऑफ 2022 they took that The free thing subscription. away, and now it's like $90 per license per year. ओह अब ये उसकी कॉस्ट है, $15 पर डे मतलब पर मंथ पड़ता है। सो देखें इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर या पुअर कंट्रीज़ में ये अफोर्डेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल ऐसे है बिल्कुल। Yeah. नहीं है। आप पाकिस्तान को ले लें, या पाकिस्तान में वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है।
So we built in a complete Zoom-like feature for conducting all meetings. It has all the same features that for instance Google Meetings would have. Yeah, this is totally integrated with the LMS. Okay. With the LMS and the recruitment. क्योंकि LMS में ये है कि आपकी जो क्लास रूम है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्चुअल क्लासेस रन करती हैं. So you can run the classes and from through the click of a button. और आपकी क्लास के मतलब सेमेस्टर के शुरू में आपकी जो क्लास रूम के तमाम लोगों के नाम आ गए हैं, राइट. अब आपने बटन दबाना है, उन सबको उसने कर दिया है, एक्सेस दे दिया है, जो कि उस क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली इन यूनिवर्सिटी फॉर दैट यूनिवर्सिटी फॉर दैट क्लास एक्चुअली. ओके. सो बेसिकली इसमें एक चीज़ तो मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रही है, वो इनेबल हो गई कि अब वो जो एक प्रॉब्लम होता था कि उस कोर्स का टीचर उस कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है, अब उसका आने का एक बहुत बड़ा इशू है. सो देयर इज नथिंग लाइक दैट. अब आप कहीं से भी बैठे हुए कोई भी कोर्स पाकिस्तान में पढ़ा सकते हैं. बिल्कुल. ये एक बहुत बड़ा एक सर ने साइड है. सर ने शुरू में ही कहा था ना ग्लोबल पोर्टल है, तो वो फिर वो ग्लोबल पोर्टल पूरा ही है उसके LMS की The कवर. best thing that I have observed about that meeting, the entire app is कि अगर आपका bandwidth is not that good, तो आपका ऑडियो बंद हो जाएगा, वीडियो बंद हो जाएगा, ऑडियो चलता रहेगा. एंड एज सून एज योर बैंडविड्थ सेम लाइक Zoom और Google Classroom. Zoom के ऊपर तो ये होता है कि आप हैंग हो जाते हैं, आपकी आवाज़ जो है वो ब्रेक होकर रोबोटिक आ रही होती है, बट कोलारिस पे ऐसा नहीं है. अच्छा, वो कंपेंसेट कर रहा है. कंपनसेट कर देता है, वो वीडियो ऑफ कर देता है It's off कर देता है, ऑटोमेटिकली, और खाली आपकी जा रहा ऑडियो जा रही होती है, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग दैट द अदर पर्सन इज सेइंग. सो दैट इज अच्छा, एक चीज़ और जो बहुत आई वुड लाइक टू मेंशन दिस, एंड मुझे सर का उसके ऊपर व्यू भी चाहिए कि वो कहाँ से और वो सारी चीज़ें है. वो मेंटोर मेंटी वाला जो वो सारा सेटअप है, एक कोलेरिस के अंदर एक सेटअप है वेयर इफ़ यू वांना हैव अ गाइडेंस ऑन सर्टेन टॉपिक, ठीक है, तो ऐसा अच्छा एक बहुत अच्छी एक थिंकिंग और थॉट जो है ना वो बहुत डेवलप है हर फीचर सेट के अंदर कोलेरिस के. तो एक जो चीज़ है, अक्सर ये होता है लोग मेंटोर किसी को भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. मेंटोर जब आप किसी को बनाते हैं सो वो आपके हिसाब से होना चाहिए, आपकी तरीके का बंदा होना चाहिए, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें, सिंग आराम से कर सकें. हाँ, लिंक आराम से किसी चीज़ को कर सकें. अब अनफॉर्चुनेटली बंदा इधर पाकिस्तान में है, वो है इंट्रोवर्ट, मेंटोर उसको मिल गया एक्सट्रोवर्ट. अब आपस में दोनों लिंक कैसे करेंगे? बट कोलेरिस हैज़ दिस फंक्शनैलिटी कि आप अपने इंटरेस्ट के मेंटोर को अप्रोच कर सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन द मेंटोर कि वो उसको एक्सेप्ट करता है आपकी रिक्वेस्ट को या नहीं करता. बट इवन यू कैन ट्रैक आप अपना पूरा प्रोग्रेस जो है ना उसको ट्रैक कर सकते हो कि ये सेशंस लिए, एंड मेंटोर कैन चेक बुक लाइक कि दिस वर द अचीवमेंट वी डिड और समथिंग प्रोग्रेस, तो आप उसको गेज कर सकते हो कि वाज इट हेल्पफुल और नॉट. सो बेसिकली जो प्रोग्रेस है, जैसे अभी उमर ने अभी शेयर की, तो ये क्या जब कोई एम्प्लॉयर जॉब्स पोस्ट करता है तो क्या ये स्टूडेंट की प्रोफाइल के साथ अटैच होती है प्रोग्रेस पूरी, दैट इसने कोई मेंटोरशिप लिया है? नहीं, अभी हमारे में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट लेकिन देखें ये डेटा पॉइंट जो है कभी भी अटैच किया जा सकता है, राइट. लेकिन डज एन एम्प्लॉयर केयर अबाउट इट? प्रॉब्ली नॉट. मैं आपको इसी सिनेरियो में आपको एक बात बताऊँ, वेरी इंटरेस्टिंग. अभी हम जो बात कर रहे हैं ना कि इंशाल्लाह इन द कमिंग बाय द एंड ऑफ दिसंबर, राइट, हमारा अभी प्रोजेक्ट इज अंडर वे वेयर नाउ वी विल बी इनकॉर्पोरेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस into the matching aspect, right? तो जो mentor-mentee matching है, it will be driven by certain other factors, right? Not just keywords, but artificial intelligence based. Same thing applies for jobs and CV matching. So right? now they don't now, have to put the checks; they Exactly. automatically will be picked up. So system exactly right. You don't have to add. It will not just look at your interest, but many other aspects also. Right? ओके. सो AI तो वैसे भी इतना है कि वो इजीली उसको आराम से कंट्रोल कर सकता है. ये और ज़्यादा तेज हो जाना, ऑटोमेट हो जानी है चीज़ें. Yeah. Yeah, and again, it will make your matches far more accurate. ट्रू. अभी जो है हमारा फॉर इंस्टेंस अभी आपने बात की थी ना, वो जो बात हो रही थी कि जॉब और CV की मैचिंग की, राइट. सिस्टम करंटली वी हैव अ जॉब एंड अ CV मैचिंग सिनेरियो, दैट इज़ अवेलेबल. कि अगर आप जब भी कोई जॉब पोस्ट करते हैं, सिस्टम गोज इन देयर एंड लुक एट ऑल द डिफरेंट CVs ऑफ द डिफरेंट पीपल एंड शो यू व्हाट इज़ द बेस्ट मैच. उसको हम जब लेके आते हैं AI के साथ, तो उसकी जो एक्यूरेसी है दैट इंक्रीजेस बाय X नंबर,
percentage. So wherever your interest is, आपको बेसिकली वो ही जॉब्स डिस्प्ले होंगी. ये नहीं है कि आपको मार्केटिंग का शौक है और HR की भी जॉब्स आपको साथ साथ दिखाई दे रही हैं. हाँ एग्जैक्टली. लेकिन अभी होता ये है कि इवन अगर आप कीवर्ड मैचिंग भी अगर आप करते हैं ना, किसी ने कहा जी कि मेरा एक्सपीरियंस जॉब आई है जी जावा प्रोग्रामर की, राइट, टेक्निकल आर्किटेक्ट ऑफ जावा. अब वो राइट नाउ वो उसने जावा का वर्ड पिक कर लेना है. अब किसी ने अगर जावा के स्क्रिप्ट भी लिखे होंगे वो भी आ जाएगा CV उसके अंदर, वीडियो आ जाएगा. बट तो व्हेन यू AI की इम्प्लीमेंटेशन थे वो बारीकी में जाके बिल्कुल रिफाइन. एग्जैक्टली वो देन बिकॉज इट आल्सो लुक्स एट द कॉन्टेक्स्ट, सही. राइट. सो वी विल लुकिंग एट कि ओके इस जॉब के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हु आर द वेरियस पीपल एट द स्कोर्स, उसकी क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव है. सो इन अदर वर्ड इस जॉब के लिए ये जो शख्स है ये मैच करता है 9.5 स्कोर के साथ. ये चीज़ें इसकी पॉजिटिव हैं जो मैच करती हैं, ये चीज़ें मिसिंग हैं इसके अंदर, राइट. अच्छा सर, आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टूडेंट्स एडमिशंस. वो ये है कि जैसे इट्स लाइक एक स्टूडेंट ने अपनी एप्लीकेशन भरी, अपनी प्रोफाइल बनाई एंड मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में डाल दी. स्टूडेंट को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है फाइनेंशियल स्पेंडिंग के हवाले से? जैसे अब फॉर इंस्टेंस अब मैं अपनी एग्जांपल ले रही हूँ और मुझे 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में इंटरेस्ट है. मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी से या इन ड्राइव उबर से जा रही हूँ और फिर वहाँ जाके उनके फॉर्म्स भी ले रही हूँ, मैं पे भी कर रही हूँ. सो उस पूरे सिनारियो में और एन अप्लाइंग थ्रू कोलैरिस उसमें क्या डिफरेंस है? सो वेरी गुड क्वेश्चन. एक तो ये है जी कि हम लोग स्टूडेंट से कोई चार्ज नहीं करते. ओके, सो स्टूडेंट जो अप्लाई करता है दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो कॉस्ट टू देम. ओके, वी विल गेट पेड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर द एप्लीकेंट्स दैट दे विल गेट. ठीक है, तो स्टूडेंट का कुछ नहीं है. ठीक है. सेकंड थिंग वी लुक फॉर इज़ कि हम यूनिवर्सिटी से कह रहे हैं कि जी जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू आ रहे हैं आप उनको कुछ एप्लीकेशन फ़ी में कोई ब्रेक दें, आप उनको डिस्काउंट दें, राइट. तो वो स्टूडेंट जब अप्लाई करता है थ्रू कोलैरिस, तो अगर वो खुद, तो उसमें एक तो ये है जी कि ईज़ ऑफ यूज़, मैंने एक ही एप्लीकेशन भरी अपने लैपटॉप से जो भी है, और उसी एप्लीकेशन वो सबके पास गई है और काम मेरा हो मुझे गया. फिजिकली भी नहीं जाना, मुझे फिजिकली दौड़ने लगा. सबसे अच्छी बात कोई ये वो बैंकों से वाउचर लेके नहीं आने, ये वो सब जो होते हैं मसले, राइट, आपने सॉल्व कर दिए. दूसरा ये है कि एक्चुअली आई सेव मनी, right, because of the discount that I get from the university, which by the way we don't get, Collaris does not But get you that made money. it easy for the students We basically. made it, and we अच्छा made वो it डायरेक्टली cheaper. हो जाता है, बीच में कोलैरिस नहीं, कमीशन, नथिंग, देयर इज नथिंग लाइक दैट. वो नहीं है हमारा क्वेश्चन. wow. तो जैसे वो अब- अगर कोई डिस्काउंट अगर दिया यूनिवर्सिटी में, that will apply to that student. वो जब उनकी एप्लीकेशन भरता है जो भी करता है तो वो डिस्काउंट उसको अप्लाई होगा. अब जैसे वही बात आ गई, मैं 3,000 का पेट्रोल भरवा हूँ और फिर मैं वो 7-8 यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हूँ, 3,000 4,000, तो जब वापस घर आ रही हूँ तो 25,000 रुपये में सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस में लगा कर आ गई. ना वो टेस्ट की फ़ीस अलग है, फिर इफ़ आई डोंट गेट सेलेक्टेड तो पैसे तो गए. अच्छा, वन थिंग इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंशन, मेरी सर से बातचीत हो रही थी तो बैग, जब सर पाकिस्तान में पहली दफ़ा आए थे, ही वाज अटेंडिंग अ ओपन सेशन, तो सर मुझे बता रहे थे कि ना पाकिस्तान में जो अप्रोच है ना लोगों की बड़ी स्केप्टिकल है कि व्हेन यू यूज्ड टू गो कि भाई ये फंक्शनलिटी यूज इट फॉर फ्री एक्चुअली. यस, यूज इट फॉर Why? फ्री. तो दे यूज्ड टू आस्क हिम कि यार इसमें आपका क्या है. आपका अच्छा, अपना इंसान नहीं देख रहा कि यार मेरा काम सीधा हो गया, बस ठीक है, आई एम नहीं. गुड टू गो. आपका क्या है? So I mean this happened a couple of times. Okay. एक बड़ी well renowned university है इस city में, I won't name. उनके जो हेड ऑफ प्लेसमेंट जो थे, उनके पास मैं गया हूँ, काफ़ी सालों पहले की बात है. उनको मैंने कहा जी कि अवेलेबल है, इसको यूज़ कीजिए. आप जो CVs बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपने अपडेट किया, स्टूडेंट सबको मिल गया, एक्सेस हो गया. उन्होंने मुझसे बड़े कहने लगे आपका प्लेटफॉर्म बड़ा ज़बरदस्त है, दिस वेरी वी रियली लाइक इट. फिर हंसते हुए कहने लगे कि तो अगर ये हो गया तो फिर हमारी जॉब का क्या होगा. उन्होंने हमारी जॉब का क्या होगा. लेकिन बिहाइंड एवरी जोक there is some thought. Yeah. People think about it. Yeah. एक तो ये हुआ था. एक दो जगह गए, बल्कि very recently I would say in the last week or 10 days or something, हम एक यूनिवर्सिटी में गए, तो वहाँ मेरे साथ जो साथ बैठे हुए थे वो मुझसे बार बार वो ये नहीं देख रहे थे कि उसके फीचर्स क्या हैं, उसके जो हमको दिखा रहे थे उनको वो ये पूछ रहे थे, तो व्हाट्स इन इट फॉर यू, आपके लिए क्या है इसके अंदर. मैं कहूँ यार अगर आपको मेरी फिक्र नहीं करें, आप ये देखें कि क्या आपका मसला मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा. बहरहाल वो एक मैंने कहा ना कि अब जैसे आपने पहले एक बताया था, जैसे HR इज़ 1 person जॉब, तो आई थिंक उनको यही हो रहा होगा कि हमने 7 लोग बिठाए हुए हैं, अगर सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया तो एक ही बंदा रही, 2 बंदे रह तो जाएंगे. बेसिकली प्लेटफॉर्म ऑटोमेट कर रहा होता है ना.
बस ही, but I look at it different ways. I look at it in a way कि अभी आपके पास इतने बंदे हैं, क्या वो सब कुछ वो कर पा रहे हैं कि जो उन्हें करना चाहिए? नहीं कर पा रहे ना, सीधी सीधी बात है. आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, रखें उन्हीं बंदों को, हालांकि फ्रैंकली आपको इतनों की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम आप सर्विस दे पा रहे हैं ना, एफिशिएंट हो जाएंगे, एफिशिएंट हो आप जाएंगे स्टूडेंट और को डिलीवर कर पा रहे हैं जो आपने प्रॉमिस किया है. अभी आप वो नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके सारे प्रोसेस मैनुअल है. तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. अच्छा सर, कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है टू फॉर एनी स्पेसिफिक एरिया इन कोलारिस? अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिशंस और LMS CMS रिलेटेड है, तो क्या उसके लिए कोई कोलारिस की टीम कोई ट्रेनिंग देती है कि हाउ टू यूज़ इट? या सो जो सर्टन फॉर इंस्टेंस एडमिशंस, जो एडमिशन ऑफिसर्स हैं उनके लिए कपल ऑफ आवर्स ऑफ बेसिक ट्रेनिंग है. दैट्स ऑल. इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यूजर फ्रेंडली है, मतलब बेसिक एनीबडी. अभी सर ने जिस तरह डिस्क्राइब किया था कि हमारे जैसे 4 पोर्टल हैं, तो वो कोई भी कंज्यूमर एक इजीली इसको इस्तेमाल कर सकता है. तो आई डोंट थिंक सो उसके लिए कोई हम लोग एडमिशन तो बड़ी, लेकिन ट्रेनिंग अवेलेबल है. CMS और LMS के लिए थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स तो दैट वो दे स्पेसिफिक तो स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी के लिए ना, वो तो स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी के लिए. लेकिन जो स्कॉलर्स है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है. सर लेट अस टॉक अबाउट कि ये जो पाकिस्तान के भी जो सारे मसले हैं ना, सारे पाकिस्तान के मसले पाकिस्तान के एजुकेशन के सिस्टम के, सॉरी आई एम सॉरी, पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इन विच कैपेसिटी कोलेरिस कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. ठीक है सर, एक जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी है, एंड बाय द वे मैं आई वुड लाइक टू मेंशन टू द ऑडियंस कि ही हैज़ बीन द रेक्टर ऑफ वेल रिनोन यूनिवर्सिटी इन कराची, मिस्टर मुबशिर जो थे उसके होते. और भाई कुछ हद तक कुछ सारी प्रॉब्लम थी, इन्होंने एक टर्बो चार्ज दिया था यूनिवर्सिटी को. द यूनिवर्सिटी वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स व्हेन ही जॉइंड इन दैट ये रिफॉर्म्स और वो सारी चीज़ें. खैर वो एक सेपरेट टॉपिक, आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन दैट हियर. बट द थिंग इज सर कि आपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, ठीक है, यू आर इन अ कंट्री जहाँ लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ये इसको करना कैसे, किस तरीके से, वो तैयार ही नहीं है ना. लाइक मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं कोई बात कह दूँ ना, नहीं हुई जो हमारे कन्वेंशनल तरीके हमने उसको अडॉप्ट करना, हमने कोई आगे की तरफ बढ़ना नहीं है, पुरानी प्रैक्टिसेस. अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है. लाइक मैं एक सर गैप भी है, आई एम मिक्सिंग अप दो थिंग, मैं ताकि उस पर रहूँ. एक गैप क्या है कि दोज हु आर कंट्रोलिंग द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान और जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो है वो मेरी एज के हैं, ठीक है, 20, 22, 19 साल के जो बच्चे हैं, दे आर द कंज्यूमर. अच्छा, जो चला रहे हैं ऑफ द लाइक, मुझे अब करना पड़ेगा मेंशन, बड़ी चीज़ें 70s 75 60 to 70 उसके अंदर, बट दे डोंट अंडरस्टैंड. अब उन्होंने जो वक्त देखा हुआ है जब यूनिवर्सिटी में होते हैं सारे, वो बहुत सब निज़ाम अलग बिल्कुल चेंज हो गया बिल्कुल. दुनिया किस पेस के ऊपर चल रही है, वो बहुत सारा आगे निकल चुकी है, निकलना है नहीं, वो निकल गई है. और मैं एक पाकिस्तान में रहते, आई एम लेफ्ट मैन, आई टोटली एग्री विद दिस थिंग. अच्छा, अब उस केस सिनेरियो के अंदर एक टेक्नोलॉजी आती है जो बनी हुई है, दैट इज कोलैरिस. हम उसको कर रहे हैं ना, केस सिनेरियो की बात करें, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? लेकिन दैट्स टेक्नोलॉजी डेवलप करना जो है वो आसान तरीन है. ये जो इम्प्लीमेंट करना जो है ना, दैट्स वेयर द चैलेंज लाइज. हम भी जब in my previous jobs assignments में when we talked about implementing large scale systems जो कि ERPs थे, जो कि एंटरप्राइज के अंदर थे, राइट, उसके सारे स्टेक होल्डर्स जो थे वो उसी एंटरप्राइज के एम्प्लॉयज़ थे, चाहे वो फाइनेंस के हों, HR के हों, मार्केटिंग के हों, ऑपरेशन, लेकिन वो उसी एंटरप्राइज में थे. उस एंटरप्राइज का एक CEO भी होता था, उस एंटरप्राइज का एक CIO भी था, सम पीपल CFO, जो कि दे कुड ड्राइव कि ये करना है, ओके, राइट, तो चलो वो होना है. नाउ व्हेन यू कम टू an environment or the problem that we are trying to solve as an ecosystem, इस ecosystem के ऊपर कोई CEO नहीं बैठा हुआ, राइट. तो पहली चीज़ तो ये है कि every entity in this ecosystem, every university has to play a role, every employer has to play a role, right. उसमें हम जब बात करते हैं lending के, तो we need to bring lenders into this thing, we need to bring all those students हैं वो play, everybody has to play their role, and then everything will resolve itself. Frankly, True. that's how it is, right? ऐसे ही. लेकिन everybody has to play their role. इसकी implementation जो है, at the end of the day, it is one enterprise at a time,
एक तो ये एस्पेक्ट है फ्रॉम अ स्टूडेंट. दूसरा है एक्चुअली सो इट्स देखें, एक तो ये है कि ये बहुत B2B और B2C है. B2B तो है वो तो बिटवीन यूनिवर्सिटीज़ हो गई या अगर कोई एम्प्लॉयर्स हो गए वो तो B2B. लेकिन जो कंज्यूमर है स्टूडेंट्स, Students. D2C है वो डायरेक्ट. वो डायरेक्ट वो direct कंज्यूमर उसे है. सो वी इनवाइट स्टूडेंट्स कम इन, sign up just like you do it in Facebook or on LinkedIn and start using it, right? Now जब वो उसके अंदर आते हैं तो some of the features that they can see other, तो the more students will come, the more enterprises. अच्छा मेरे पास अगर for instance I'll give you an example. हमने about couple of 3 years back we were giving scholarships. हम हर महीने 25,000 हज़ार रुपये की हम 2 या 3 स्कॉलरशिप दे देते थे. और उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए यू हैड टू बी इन द प्लेटफॉर्म, यू हैड टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ contacts, you had to done some blog writing or what have you. And in a matter of like few months we have like 38 or 39,000 students signed up, right? उस वक्त तो बाकी सारे फीचर्स थे भी नहीं उसके अंदर जो कि अब बात कर रहे हैं. अब हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर आपकी इंटर्नशिप्स, जॉब्स की, असिस्टेंट फाइनेंशियल एड की फीचर्स हैं, मेंटरिंग, ये उस वक्त है ही नहीं बाय द वे. लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट शो किया. So basically, somebody now does not have to go, especially like to find a job on different platforms. सब कुछ एक ही जगह मिल रहा है आपको. One And at no cost. At no yes, cost. a Not- one-stop that's the shop thing. basically. नॉट ओनली जॉब, ये- वो हर चीज़ अब एक जगह Exactly, पे मिल रहा फाइनेंशियल है. असिस्टेंस भी वहीं से मिल रही है आपको, जॉब भी वहीं से मिल रही है आपको ट्यूटरिंग करनी है वो भी वहीं मिल रही है, Education भी वहीं से पे मिल रही है. आपको अपनी चॉइस ऑफ Starting of यूनिवर्सिटीज. education and ending it with अच्छा, professional एक जो life. चीज़ है ना which is very important, that is connections. आप अभी जो हम कन्वर्सेशन में बात कर रहे थे, मैंने उसके नोट करा था चीज़ें. यू कैन मेक कनेक्शंस ग्लोबली, वो जो कम्युनिटी वाली चीज़ है. आपको क्या हो रहा है इसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो ऑप्टिमाइज हो रही है ग्लोबल लेवल पे. इफ आई एम अ गिटारिस्ट, सपोज एग्जांपल है, इफ आई एम अ गिटारिस्ट, टेक्नोलॉजी है दैट इज इन पाकिस्तान, आई एम यूजिंग दैट, आई कैन communicating with a person living in USA, Canada, वहाँ पे उस लेवल के ऊपर what the situation of music industry internationally, I can talk about that. I'm optimizing my performance. True. कि किस तरीके से आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं. So that is one of the things which is very important. And another thing which I think Behrouz was telling me about the CV, that when you on Colaris, if when you update your profile, you can easily download your CV, so you don't have to go and make your own CV except from Colaris. So that's तो a good. basically वो ये फीचर सेट है. लाइक Behrouz मुझे बता रहा था उमर कि तुम जाओ अपनी प्रोफाइल से मेंटेन करो, सिस्टम उसको खुद ही समझेगा क्या चीजें, सारा सब कुछ है, और वो आपकी एक सीवी प्रिंट कर देगा इन द फॉर्मेट. एक ही टेम्पलेट एक हाँ, ही पूरे टेम्पलेट उस पे template. आपको कहीं नहीं जाना. अच्छा बाय द वे वो टेम्पलेट मैं आपको बता दूं, वो टेम्पलेट कहते हैं इट्स ऑफ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, क्योंकि कोलेरिस की एक अच्छी बात ये है कि इसकी जितनी भी फंक्शनलिटी थी वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से आई थी, लाइक द सीईओ हैज मेंशन, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर सीवी प्रिंट करता है. ठीक है. और आप उसका ये है कि असल में स्टूडेंट्स की जो सीवी होती है ना उसकी फॉर्मेट स्लाइटली डिफरेंट होती है कंपेयर टू ए प्रोफेशनल. क्योंकि स्टूडेंट के पास बेसिकली टिपिकली वेरी सिंपल जो है ना वो ये है कि उनकी एजुकेशन पहले आती है, एक्सपीरियंस बाद में आता है. प्रोफेशनल होता है उसका एक्सपीरियंस पहले आता है, एजुकेशन बाद में आती है. तो डिपेंडिंग अपॉन वो रेज्यूमे होती है स्टूडेंट की, वही ना सीवी और रेज्यूमे है. तो वो बेसिकली थोड़ा फॉर्मेट का. लेकिन ये कि यार इफ़ यू मेंटेन द प्रोफाइल दैट्स व्हाट इट डज. आई मीन अनदर फीचर दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट अर्लियर जो मैं शायद आई फॉरगॉट टू मेंशन, एडमिशंस में वी आर आल्सो इनेबलिंग द टेस्टिंग, राइट? तो जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम होता है, so one of the university that is using, they're actually using Colaris completely for not only for admissions but also for their entrance testing. So throughout LMS के अंदर सारा उनके entrance का टेस्ट होता है और those results then are used for the admissions purposes. So जब स्टूडेंट्स के एग्जाम्स ये सब कुछ हो रहे होते हैं, so that happens on Colaris, जब जो यूनिवर्सिटी के जो हो रहे होते हैं, और मतलब क्या उसकी रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह सब होती है उसी पे ही? हाँ जी. तो वो जो LMS जो यूज़ कर रहे हैं उसमें उनकी एग्ज़ाम्स और उसके रिकॉर्डिंग, उसके ग्रेड्स वगैरह सारे उसे मेंटेन So the किए जा रहे हैं. faculty can maintain there. Yeah. अच्छा एक जो चीज़ सर इम्पोर्टेंट है एंड आई वुड लाइक टू मेंशन इट, ई टेस्टिंग ऑफ कोलेरिस. ठीक है, कोलेरिस हैज़ दिस फीचर सेट ऑफ ई टेस्टिंग, और आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग. फिर उसके अंदर मैं मजीद उसको एक्सप्लोर करे जा रहा था. इट कैन, आप बराबर में बैठे, यू बोथ गाइज हैव द सेम एग्जाम, आप लोग चीटिंग नहीं कर सकते.
वो डिफिकल्टी लेवल के ऊपर गेज हो के वो टेस्ट बना हुआ है, वो सारी चीज़ें। और अच्छा ये जो फीचर सेट है कोलेरिस ये कंपनी जो है, ये तो पाकिस्तान में उन्होंने डेवलप करी है ना। अच्छा मैं इसको कहाँ देख रहा होता हूँ, लाइक मैं हमेशा, लाइक इट्स बीन 4 years मैं एक ही चीज़ देखे जा रहा हूँ जी, MD गेट क्रैश हो गया, MD गेट ये हो गया। आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो हो गया, ठीक है, वो क्रैश हो गया। उसे कहते हैं वो बढ़ गया। हाँ, वो बढ़ गया। तो क्यों हो गया यार? नेशनल लेवल पे टेस्ट है और वो मेंटेन नहीं कर पाए, वो चीटिंग हो गई। तो अच्छा एक और भी चीज है, यस, क्रेडिबिलिटी क्या है कि आप जो पाकिस्तान में एक तो सर बहुत, आई वुड लाइक टू मेंशन दिस कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन लीड करी है, रिनॉन यूनिवर्सिटी लीड करी है, और मैं चाहता हूँ सर ये टेक दिस अपॉर्चुनिटी और मैं उसके ऊपर बात करूँ कि हमारी जो सर एजुकेशन है ना, उसकी वो वैल्यू नहीं। पाकिस्तान के अंदर सर एक इंटरनेशनल सिस्टम, कैम्ब्रिज सिस्टम आई गेस वो है, वो सही चीज़ वहाँ से बचा। अच्छा बड़े मजे की बात बताऊँ, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दिस टू द ऑडियंस, अगर आप मैच करेंगे ना लेवल ऑफ कोर्स आपका इंटर वाला और जो कैम्ब्रिज इंटर वाला ज़्यादा पड़ता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसका भी पीछे एक लॉजिक है, क्यों जी? क्रेडिबिलिटी नहीं है आपके सिस्टम में। वो लोग क्या करें, कोई भी टेस्ट की तरह आप मुझसे बात करें, आइल्स हो गया, वो टॉफिल हो गया, डुलिंगो हो गया, दैट आर ई-टेस्टिंग, वो इलेक्ट्रॉनिक असेस हो रहे हैं, उनका रिजल्ट क्यों आता है रियल टाइम में, वो क्लियरिज आ रहा है। बट अब वही बात आ गई सर यहाँ पे दोबारा कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये सारा सिस्टम जो है ना। हम अभी भी वो लगे हुए, जो पर्चे आएंगे वो होगा, वो 5 दिन पहले चेक करेंगे, फिर वो नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे। वो भी कब, जब मैं अगली क्लास के भी मिड टर्म में पहुंच चुका हूँ, फिर मुझे पता चलेगा मैं पिछली क्लास में फेल हो गया था। वो ऐसी है ना, विंटर की ऐसी वीडियोस चल रही होती हैं, बस टिक करो और जा रही है शीट्स, तो वो वही चल रहा है सिस्टम, वही चल रहा है, अब रुक नहीं रहा वो। तो देखें, या इट्स ट्रू, देखें इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर challenges ज़्यादा हैं. I mean, there is a reason why they are not where the first world countries are, like you say, is this. वहाँ में systems develop हुए हैं, systems से मुराद ये, there is a process, procedures and controls established होते हैं. ज़ाहिर है emerging market में वो चीज़ें नहीं हैं. So we take the example of Pakistan very specifically. हमारे यहाँ unfortunately systems established नहीं हो पाए. ये हुए भी थे तो हमने तबाह कर दिया उनको. And now we are, I call it, there are a very large percentage of population that is a beneficiary of chaos. Right? Chaos is something that they are beneficiary. अगर ये chaos ख़त्म हो जाए तो a large population wouldn't know how to survive. True. Right? उनको तो आदत पड़ी है लाइनें तोड़ने की. अब अगर लाइन में लगना पड़ गया तो this would be very difficult. They can't survive. मोस्टली यूनिवर्सिटी में क्या होता है जी कि वो एनुअली बजट निकला, HEC ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो इम्प्लीमेंट कर लें आप फला सिस्टम ये वो, दे डू अ लाइसेंसिंग एंड दे आर अनेबल टू मेंटेन दैट. जब आप लाइसेंस मॉडल जब आप कर रहे होते हैं तो आपको उसको रिन्यू करना है. वो नहीं कि वो तो फिर आपने अगर वो तो फिर ये हो गया ना, आपने 16 का लाइसेंस खरीदा, वो अब आप बैठे हुए 2023 में, तो 4 और 7 साल में वो पुराना वो मैं कर रहा हूँ. अच्छा, अब the thing I'm mentioning it, Kuler is a software as a service. Yeah, it's software as a service. So it is subscription based completely, which means that we, on a regular basis, ongoing basis, we keep updates with the technology, with the functionalities and whatever, and they are part of the subscription. And you are right, most enterprises जो हैं उनमें issue है तो licensing का, कि आपने एक मर्तबा खरीद लिया. I mean, we were at that university just a couple of weeks ago. उन्होंने कहा जी हमने ये Oracle डिप्लॉय किया था 6-7 साल पहले. उनसे सवाल किया गया ओके तो, लेकिन हमने उसके बाद कभी लाइसेंस अपडेट नहीं किया. सो व्हाट डू यू थिंक, राइट? और ये एक बड़ा कॉमन सिनेरियो है. मतलब दिस इज नथिंग बिकॉज पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बिल्ड इट. तो जो प्लेटफॉर्म हमने जो बिल्ड किया है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, वेरी लो कॉस्ट, और इसका देखें इसका पर्पस उतना ही कमर्शियल है जितना सोशल है. Agree. I would say maybe social more and commercial less. Yes. Right? It's creating an impact. Yeah. So it is, it is driven by a purpose. So I mean, I'm very proud of that fact. Okay, you try to do something that actually helps. और especially अगर आप बात करते हैं, people development, professional development, उसका impact जो है very far reaching. और but it's very affordable. There is that's सोशल जहाँ पे आपने एंगल की बात करी है ना, तो
देयर इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ईच एंड एवरीवन. Each and लाइक everyone. मैं कुछ 2-4 दिन पहले आई वाज इन अ मीटिंग, इनकी फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन, दे वर पीपल गेट टुगेदर होती है, तो ही वाज लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ना. तो आई जस्ट गॉट टू नो कि व्हेन ही वाज देयर, आई एम शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस, ही वाज वॉकिंग अराउंड द कैंपस एंड ही टेल के यार ये फोटोशॉप क्या है, ये फोटोकॉपी की जो दुकान होती है ना, ये व्हाट डूइंग हियर. तो वो पूरे ना वो द गाय वाज नरेटिंग मी द स्टोरी ऑफ सर मुबश्शिर. उन्होंने कहा कि ये जो है ना यहाँ पे वो सारी चीजें बाइंडिंग और वो बुक है और वो सारी चीजें बनती हैं. एंड व्हेन ही सॉ दैट इट बोले यार ऐसा तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता. तुम लैपटॉप है इतनी, तुमने सिस्टम करे सब कुछ है, हुए लेकिन पेपर पे करने नहीं, वेस्ट है ना, Exactly. वेस्ट. और ये वो सारी चीजें व्हाई यू आर नॉट यूजिंग. अच्छा नाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट वी कॉल इट अ ग्रीन Go green. गो ग्रीन. Yeah. गो ग्रीन, दैट ऑर्गेनाइजेशन गो ग्रीन. उनका सबसे कम जो है वो परसेंटेज है वेस्टेज का और वो सारी चीज़ों का. लेकिन वो भी वो उसी में लगे हुए हैं. सर Yeah. कोलारिस जो यूनिवर्सिटीज़ जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, सो फॉर दो स्टूडेंट्स इज देयर एनी प्रोजेक्ट अंडर कोलारिस दैट दे कैन बेनिफिट फ्रॉम, कोई स्कॉलरशिप और जैसे जो बेसिकली होते हैं ना स्टूडेंट्स को अपने सोशल वर्किंग आवर्स एक उनको देना होता है कि उन्होंने सोशली क्या काम किया है. इज देयर समथिंग फॉर स्टूडेंट्स देयर? या सो देखें, एक जो I'll give example. मैं 5-6 years back, I was in conversation with one of the largest university in Karachi. It's a very well renowned public university. मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो मुझे बताने लगे कि जी हम जो है ना HEC रिक्वायर्ड करता है कि आपके स्टूडेंट्स ने सोशल वर्क के कितने आवर्स किए हैं. ओके. तो मैंने कहा तो फिर आप क्या करते हैं आप? कहने लगे ये वो महीने के महीने फॉर्म भरना होता है, वो जस्ट फिल इट आउट based upon just some numbers, some guesses. कोई accurate नहीं है. So one of the things that again, see now we're talking about use cases. Yes. एक जो use case जो मेरे नज़दीक है कोलारस का, वो ये है कि जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सोशल वर्क करते हैं, उस सोशल वर्क को हम ट्रांसलेट करेंगे किसी पॉइंट्स के अंदर, और वो पॉइंट्स जो हैं वो आप डिडक्ट कर लें अपनी पेमेंट्स में से आप. ओह नाइस. राइट. सो आपने आपके स्टूडेंट्स ने किसी टीचर्स की हेल्प की कहीं, राइट, या हम जैसे एक और वो सिनेरियो लेके चल रहे हैं, वो रेस्टोरेंट्स लोगों को खिलाने का, उस टाइप की चीज़ें, ये प्री अप्रूव्ड हम करेंगे जो हैं कुछ चैरिटीज़ या कुछ सोशल वर्क की ऑर्गेनाइजेशन. आपने वहाँ पर कितना टाइम कंट्रीब्यूट किया, उस कंट्रीब्यूट को कन्वर्ट किया हमने पॉइंट्स के अंदर, और पॉइंट्स को हमने कन्वर्ट किया इनटू रुपीज़. ओके. और वो रुपीज़ जो हैं दे बिकम अ क्रेडिट अगेंस्ट व्हाट द यूनिवर्सिटी ओ अस फॉर द लाइसेंसिंग ओके. subscription, right? गॉट इट. encouragement है स्टूडेंट के लिए to do this type of work. ऑलराइट. One thing more I would like to mention. Close करें? Okay. मुझे नहीं अब नहीं बोला. हाँ बस लास्ट वो क्वेश्चन. वसीला का मैं एक एंगल वो करना चाह रहा था. You want to talk about Wasila in the next? Yeah, you I think want. that's a separate one by Okay. itself. We'll have it for the next That time. will बस इसको confuse. conclude कर दो. Okay. So I guess it was a very good session talking on the about the higher education in Pakistan और उसको किस तरीके से digitize हो सकती है. To me, हो मेरी सकती learning नहीं, होने जा रही है. होने जा रही है. होने ये जा होने रही जा- है. होने But जा ये रही रही है. है. नहीं, no, I would नहीं. एक इसमें एक प्रॉब्लम है कि लोग कितने यार राजी हैं. लाइक मैंने जैसे बात करी ना कि यूनिवर्सिटी वन, दोज हु आर सिटिंग ऑन दैट प्लेस, क्या वो एग्री हैं इस चीज़ को फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल? बिकॉज मैंने इसको बहुत असेस करा है, लाइक आई वाज टॉकिंग द पॉडकास्ट, बट मैंने इसको पर्सनली इसको एनालिसिस करा है. दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट. True. And whether university, VC or any organization works for higher education in Pakistan is ready to adopt this functionality, digitize करना चाहिए, क्योंकि दुनिया जो है ना बॉस वो अभी इस लेवल पे है डिजिटल एस्पेक्ट के ऊपर. उमर भाई आपकी वही वाली बात आ जाती है कि बाबे बैठे हुए ऊपर आप उनसे हो पाएगा तो सही है, लेकिन सर के जितने No, but लगा. what if, देखो द प्रॉब्लम इज कि अक्सर एक तो मुझे बहुत इशू है इस चीज़ से कि पाकिस्तान में जी वो तो दूसरे मुल्क की थी, फला की मुल्क की थी. अब पाकिस्तानी पर्सन इज हियर, उसने अपने मुल्क के लिए एक चीज डेवलप करी है, नहीं इज आस्किंग कि यार कर लो. अब वो उसमें भी रेडी तो नहीं हो, दैट इज समथिंग कि वो कौम तो बढ़ना ही नहीं चाहती ना, कि उसने वो तय कर लिया है. ठीक है. लोग मुझे कहते हैं कि जी कि ये तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे होगा. यार ऑल आई नो इज जस्ट डू इट. यू जस्ट कीप पुशिंग, यू कीप कम्युनिकेटिंग. अब जैसे हम जो बात कर रहे हैं, ये जो पूरा सेशन हमारा है, ये इसी का हिस्सा है ना. इट इज़ टू कम्युनिकेट इट आउट
to those who probably were not aware of it. कि यार कि क्या possibilities हैं, क्या हो सकता है, और ये कोई overwhelming thought नहीं है. अगर मुझसे पूछे है कि how long does it take to deploy Polaris at a university end to end? Less than 3 months. Less than 3 months, you can platform deploy it, people train and start using it. अगर आप कहें कि, और उसमें लिमिटेशन जो है वो यूनिवर्सिटी की है, हमारी नहीं है. हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो 30 डेज के अंदर हो सकता है. अच्छा, ये सर है पूरी एंटरप्राइज और सारी ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय करने का. लेकिन इफ ए स्टूडेंट और एक कोई यूजर बनने जा रहे हैं, दैट इज वो इंस्टेंटेनियस वो है. तो जस्ट साइन अप है, सब्सक्राइब साइन अप करें और स्टार्ट यूजिंग. सो बेसिकली जो ऑडियंस के लिए जो एक मैसेज है वो ये है कि आप Polaris पर आएँ, साइन अप करें और अपने आप खुद एक्सपीरियंस करें कि जो भी बातें हमने कही हैं वो कितनी सच हैं. सो वी जस्ट लीव इट टू द ऑडियंस. And you can wait until the next episode when we'll be back with something more exciting and more thrilling about Polaris. Another guest alongside with Mr. Mubashir to have some talks, comparative analysis. So see you guys. Allah Negeban. Allah Hafiz.